Am I audible? Hello, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. A very good evening to all of you. Today, we are having our next lecture on Aushadh Pariksha Paddhati, Bhasm, Aasav, Arishta, etc. We are having our resource person today, Professor Anupam Srivastava sir, and chairperson of today's session is Professor Nisha Gupta madam. Our resource person, Professor Anupam Srivastava sir, is currently working as professor and head in the Department of Rastriya and Bhasaja Kalpana, National Institute of Ayurveda. Sir previously worked as former director, National Academy of Ayurveda, Ministry of Ayush. Sir was also former CEO, ATAB, a notified accrediting agency by Ministry of Ayush. Sir has versatile experience in each field like clinical, drug research, in publications, in administration, and sir is also key person in for providing various trainings. And sir has also visited foreign nations to get to represent Ministry of Ayush, and he has also been invited as expert on ASU drug regulations at Malaysia. Now, without taking much time, I would like to invite sir for his today's lecture. Please, sir. Thank you, Dr. Sarika, for doing Mahima Vandan about me. It is not like that, basically. I had been working. Yes, I had been working for ministry. I'm working with NIA. And maybe like that, I had been addressing many issues. Yes, it is true. Today, very quickly, I will come on the topic about this thing. What do you call Aushadh Pariksha? If we see what is the need, what is Aushadh, and entire all these things, we go in the days when the civilization was coming up. अगर देखें जब मानवता जन्म ले रही थी तो बहुत सारी चीजें जो अर्ली मैन जो आया, जो जो जमीन पे आया, जो धरा पे आया, he came with a hunger and a disease. Just I'm giving you a brief to come on the topic. He came on a hunger and a disease condition, and he tried to explore the possibilities which are available on the earth for the remedy of those two things, for the food and also for the cure of the disease. So he tried many things. Initially, he tried the raw materials which was available to address those two issues. Gradually, when the Stone Age came, incidentally the fire came by the this thing. When the two stones came together forcibly, the fire was developed, and incidentally he roasted the food material or roasted the plant material or roasted what were available to him, and he got the taste. This way, their development of the formulation, development of the preparedness, या आहार की संकल्पना, या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की संकल्पना, या फूड processing की कल्पना जन्म, and due course of time, it gradually increased, and the man learned by the experiences, and he made so many things for his food purposes as well as for remedial action for his alliance and complaints. फिर हम जानते, we all understand कि what happened, how the Sincona came. There's so many histories and those sort of things are there. But gradually, then when the things developed, then what is the need of the question of sterilization came. The question of the what do you call testing came. Why? The reason behind was this. Greed is also a part of this thing. Demand is also a part of this thing, our society. What happened ki earlier, if you talk about before the independence, or even the more time before, the gharanas, the sadhus, or the people of the renowned, this you called importance, they were doing, and they were the mark of the authentication, they're the mark of the your faith. Yes, this gharana, this sadhu gives the medicine, and it is a standard medicine. And when it came the post-independence era of 50s and 60s, then the Drug and Cosmetic Act came. Then it became like something to be regulated.
And the purpose of again the regulation to making availability of the standard materials available for the common person. And again, the purpose of the act was also regulation was also to restrict the import in the British India. Many things, many items were being imported in the country by the to regularize, to standardize those material for the use of the common citizen. It was made, yes, provincial governments gave the consent to the central, yes, there could be an act, a rule which could uniformly be enacted entire country. So this way, the process of standardization, the process of uniformity came in the action. And similarly, the various provisions, the GMPs and WHO GMPs came in action. Now, another part was just saying the need, what happened earlier those days, what was happening. Vadyas, if you talk about the Ayurveda, Siddha, Unani systems or Suvaripa systems, the Vadyas or the doctors, even the doctors, synthetic drug also, the doctors were using their own medicine for the betterment, for giving the cure to their patients. And they were being treated. But a doctor or physician or a Vaidya or a Hakim was not able fully to fulfill the demands as the population increased, as the number of the patient increased, as the number of demand increased. So this way, the commercial houses, the commercialization of the products came. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दवाओं की जरूरत होती है, जिसकी डिमांड वो वैद्य, वो डॉक्टर, वो प्रिस्क्राइबर नहीं कर पाता, तो इसलिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट केम इन द एक्शन और फिर वो दवाएं को बनाने लगे. तो डेफिनेटली अगर आज की डेट में हम आपसे कहते हैं कि इन समर्स I require 1000 kg of the Chyawanprash, or if I give some drug X in a certain, so there the manufacturer or the supplier may or may not have that amount of the drug. But then greed and then the adulteration comes in the picture. He will try to add or to just to meet the desire. So many things could be done. This way, this all give the birth to making a uniform product. एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को लाने के लिए एक अटेम्प्ट किया गया. वो उस अटेम्प्ट में एक्ट जो कि रेगुलेशन का था वो भी आया, उसमें फार्माकोपिया भी आई, उसमें स्टैंडर्ड्स भी आए, वो तमाम चीजें, फार्माकोपिया कमिटीज भी आई, प्रोविजंस भी आए, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व हुई, बोटैनी भी इन्वॉल्व हुई, आयुर्वेद भी इन्वॉल्व हुआ. So many things came in action for the regularization, for standardization, or for the testing protocols. So many experts were involved. Then these protocols, these testing parameters, these standards were developed. So with this background, we will try. I have been given 1 hour time, though the subject matter is quite vast, and I may or may not be competent enough to throw ample light of all of those aspects, but I will like to show you, I like to explain you what I have earned, what I have learned in the journey of my career and the journey of my learning. So with this background, for the purpose of making a uniform drug, for the purpose of making uniform formulation, or the purpose of giving the quality formulation, efficacious formulation, because all three are the intermingled. The quality or testing parameter came. Now I share you a few slides. Let me check. Yes. Yeah, I am saying there are some requests that slides are not being shown. So I was not sharing the slide, how the slide could come. Will you go before? Yeah. I had been assigned a topic of Aushadh, Yoga, Pariksha, and Paddhati. Means definitely how the Aushadh Yoga testing could be done. If you see, if it is a Sanskrit term, I don't know the audience available at who are here, who are attending, just to simplify the process. I will be sharing very simple words and very simple way to share. Aushadh Yoga, what you can say, a formulation.
A formulation of the dosage form, you can say for the simplicity, it could be single drug formulation also, it could be compound drug formulation. Mostly, if you see this Ayush systems, Ayurveda, Siddha, Unani, so Aripa, many formulations are there, which has a polyherbal formulations or a herbal metallic formulations. They contain number of the formulation, number of the ingredients. And Pariksha Paddhati, definitely, it is a testing protocol. So we would be discussing quickly on those issues. If you see the particularly Ayurveda, I always say कि Ayurveda, Siddha and Unani, these systems have very commonalities. So if many of the times Ayurveda, Siddha, Unani could be taken together, or a simple, my focus will be Ayurvedic drugs. Definitely, I am a scholar of Ayurveda. It could be like this, simple raw drug, compound formulations, and a different doses form could be there. We all understand crude drugs, simple हम जानते हैं powder, चूर्ण जो भी कहते हैं, crude drug raw material जिसको कहते हैं. फिर the formulation came, फिर experiments हुए, extracts आए, came in the picture. You know extracts माने कैसे, extracts could be so many extracts. People who are attending must be knowing what extract, hydroalcoholic extracts, other solvents like benzene and chloroform, they may or may not be useful for the therapeutic purposes, but yes, there are extracts are there of the different formulations. They have their distinct our own importance. So there are different extracts are there. So and then compound formulations. Yes, what I said, like you see, leaf 52 is a very common formulation which is mainly used. It roughly goes for more than 50 ingredients. Similarly, the herbal mineral formulation, where the herbs, minerals are together mixed in a certain amount and a certain preparation is made. If we talk about there could be also, these could be a classical and a patent. We all must be understanding the classical is a no word if you're talking about the regulation, classical is a no word given in current regulation which is existing. It is a ASU drugs or Ayurveda Siddha Unani drugs, and other is a patent or proprietary medicine. The formulation which has been derived by the own will or by their own therapeutic purposes. It could be many formulation, many ingredients developed by a particular owner. It could be patent or proprietary medicine. This comes under the 3H of the Drug and Cosmetic Act. It could be syrup, it could be ointment, it could be capsule, granules, confectionery, dusting powder, tablets, suppository syrups, Aasav, Arishta, and if you go in a traditional form, Aasav, Arishta, Ole, Pak, Quat, Chun, Gugul, Chun, many more are in the list. Bhasmas, Lohar, Mandur, Pesti. These are the different doses forms, different types of the medicines which is used or prescribed as per the need, as per the drug also, as per the nature of the drug also, as the nature of the therapeutic purposes also. Our ancient people were so wise. You will see, if you go in the deep of the text, you will see which drug should be used as a him kashai or which could be boiled. They were wise enough. They have their experiential evidences. They have the experience. They have asked. They have for the aromatics. They have always asked for the him kashai. But in contrary, for the raw materials, woody materials, they have asked for the hot decoctions. So this all has been written 1,000 years back. This gives an ample understanding how well the science was, experiential science, experimental science, or observational science was there in those days. Yes, what is the need of the testing? If you see, yes, the need of the testing could be for the three purposes. जैसे मैंने आपसे कहा, टेस्टिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक तो प्योरिटी के लिए, एक्सटेंट ऑफ द फॉर्मेट कि कितना वो कोई भी ड्रग या कोई भी चीज कितनी प्योर है, कितनी शुद्ध है. अगर वो प्योर होगी, फिर आइडेंटिटी के लिए टेस्टिंग ये भी जरूरी है कि जिसमें जो चीज लिखी है वो चीज है कि नहीं है. आज के डेट में अगर आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ड्रग्स जो साइट्रस के रेगुलेशन में आती हैं, प्लांट स्पेशली प्लांट्स, वो एक्सटेंट हो रहे हैं एंड पीपल आर मिक्सिंग इट, एडल्ट्रेटिंग इट. तो आइडेंटिटी के लिए, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग के लिए, एंड डेफिनेटली द क्वालिटी. वो ड्रग तो है, लेकिन उसकी वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको कहते हैं, जिसको वीर्य कहते हैं, सवीरता जो ड्यूरेशन है उसके बाद की है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता. जो शेल्फ लाइफ को जिसको हम कहते हैं, अगर उन चीजों का उसकी पुरानी, तो दिस ऑल गिव्स. प्योरिटी के लिए टेस्टिंग जरूरी है, आइडेंटिटी के लिए टेस्टिंग जरूरी है, एंड क्वालिटी के लिए डेफिनेटली टेस्टिंग जरूरी है. And all together are somehow intermingled or intermixed or अगर वो प्योर है तो डेफिनेटली अगर क्वालिटी भी होनी चाहिए और उसकी आइडेंटिटी तो होनी चाहिए.
वो बहुत सारी चीजें मैं बड़ी फ्रिक्वेंटली उसका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, स्टरलाइजेशन क्या होना चाहिए, and what standard is. Agar if you see in the terms of the terminologies, yeah, it is a parameter which denotes the quality and the purity of the material. ये parameter होगा standard, और एक numerical value भी हो सकती है. It could be numerical value है जो सिग्निफाई करेंगे, और हम आगे बात करेंगे. एंड ड्रग की रेफरेंस में अगर होंगे तो कन्फर्मिटी होगी इसकी, वही बात की, आइडेंटिटी की, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी की, प्योरिटी की. और स्टरलाइजेशन क्या है? स्टरलाइजेशन देखिए, द प्रोसेस विच इंश्योर्स. अब अगर देखें कि स्टरलाइजेशन की बात करें तो वो प्रोसेस है स्टरलाइजेशन जो इंश्योर्स की प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड. सेम पैरामीटर के प्रोडक्ट बार बार प्रयोग हो रहे हैं अगर एक एसओपी फॉलो करके, तो वो एक स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है कि एक डिजायर्ड रिजल्ट के लिए वो प्रोडक्ट आता है. आप देखें स्टरलाइजेशन की बात या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात करें तो हमारी दादी, हमारी हमारे हमारी फैमिली के मेंबर्स, हमारी माएँ बात करते करते घरों में वो खाना बनाती हैं. आपके यहाँ 10 लोग हों, 20 लोग हों, तो वो बात करते करते वो तमाम चीज़ें, वो रेशियोज, फूड स्टफ के रेशियोज, इधर इट इज पल्सेस, इट इज वेजिटेबल, हाउ मच क्वांटिटी इट इज रिक्वायर्ड, how much temperature is required, how much water is required. While talking, they add and they cook, and it never goes in vain. कभी ऐसा नहीं होता कि ज्यादा हो. तो उन्होंने क्या किया कि स्टरलाइज प्रोसेस किया, एक एसओपी फॉलो की. एक एसओपी है जो कि एक्सपीरियंशियल हो गई है, जो कहीं नहीं लिखी है कि चावल में इतना पानी डालना चाहिए, दाल में इतना. दे आर इक्विटेड. तो बार बार रिपीटेड प्रोसेस करने के, दैट प्रोसेस विच इंश्योर द प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस ऑफ द डिजायर्ड इफेक्ट. वो डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड गोल जो है, डिजायर्ड चीज जो है, मतलब एक मेकिंग सम रेसिपी फॉर योर ओन डाइट, उसके लिए वो दैट इज ए काइंड ऑफ स्टरलाइजेशन, ए प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन, ए प्रोसेस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर. स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वालिटी इश्यूज आते हैं. अब दो टर्म आते हैं, उसको फिर कभी बात करेंगे. क्वालिटी सिस्टम में एश्योरेंस भी होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए. दिस ऑल यू मस्ट बी नोइंग कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में ये इसकी आज का रिलेवेंट नहीं होगा, सिर्फ क्वालिटी की बात करनी थी. नीड क्या है, वही बात आ गई कि क्यों नीड स्टरलाइजेशन की है. क्वालिटी कंट्रोल के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी के लिए, फिनिश प्रोडक्ट अच्छा हो, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फिनाइल प्रोडक्ट के लिए भी, और डेफिनेटली प्योरिटी, सेफ्टी. दिस ऑल इज नीडेड फॉर द पर्पस ऑफ द स्टरलाइजेशन ऑफ. अब जाते हैं अपने क्लासिक्स की ओर. चरक, we all, many of us understand कि चरक के बारे में. It is as a reference book, or it is a classic which talks about many things, treatment standards, all and treatment methodologies. विधान स्थान में देखते हैं तो विधान स्थान के 8 में बहुत अच्छा लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन, वो रॉडर से इदमेव प्रकृतम, इदमेव गुणम, प्रभावम, देश, जात, they have given a very एक सूत्र रूप में उन्होंने लिखा है. ये स्टरलाइजेशन स्टार्टिंग कल्टीवेशन और रॉ मटेरियल से लेके मेथड ऑफ यूज तक की बातें की हैं श्लोक में, जिसको आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. इदमेव प्रकृते, नेचर ऑफ द ड्रग, गुणम, डिजायर्ड प्रॉपर्टी, प्रभावम, these all are Sanskrit term left side. What is a specific effect of the asmi found or cultivated in a particular place, and this all upsaskritam, process of prepared in a particular manner. So they identified ki how the drug should be, what should be nature, what is specific property. Detail has been given in our classics, and this again what comes in this I always call as a reference book for the revelations. I call it the Babel of further drugs. It is ultimate goal where this also described. People understand that drug and cosmetic and only talk about the regulations. Yes, it talks about the regulation, but also for the sterilized drug also. How we could see if the journey of the sea, we say the testing journey or sterilization journey, it starts from 1962. The APC came in, Ayurveda Pharmacopoeia Committee. It came in a proceeding started, and APC if you see it 64, ASU drugs came under the chapter section 33, chapter 4A. Then in 69 the formulary. There are two terms very frequently used. दो चीजें बहुत बार यूज होती हैं, एक तो फार्माकोपिया, एक फॉर्मुलरी. फार्माकोपिया इज बेसिकली बुक ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ. जब आप टेस्टिंग की बात करेंगे तो यू मस्ट बी अवेयर कि फार्माकोपिया क्या है. फार्माकोपिया है ड्रग ऑफ आइडेंटिटी,
प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ, वो बताती है, आइडेंटिटी भी बताती है ड्रग कितनी प्योर है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और अब देखें मोनोग्राफ जब इस पे ये मोनोग्राफ्स पर एक ड्रग के बारे में, और फार्मूलरी क्या है कि एक डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं। आप देखते हैं कि एक च्यवनप्राश बनाने की 10 फॉर्मुलेशन आपको मिल सकते हैं, आरोग्यवर्धनी के देखें तो दोनों फॉर्मुलेशन है डिफरेंट डिफरेंट। आप देखिए, इफ यू आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाता हूं कि आप देखें कि अपने क्लासिक्स में एक फॉर्मुलेशन के लिए देवर एक नाम से आपको 8-8 फॉर्मुलेशन मिलते हैं। तो व्हाट इज द रिलेवेंस टू मी, जो मैं समझ पाता हूं वो ये रिलेवेंस है कि हम जब टेलर मेड मेडिसिन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हैं डिफरेंट एरिना में, और देश परिस्थिति काल से उसकी वीर्य उसकी कार्मुकता में परिवर्तन होता है, और एक पित्त प्रकृति के आदमी की दवा दूसरी होगी और कफज आदमी की दवा दूसरी होगी, वातज की दूसरी होगी। तो शायद ये भी एक कंसेप्ट रहा डिफरेंट फॉर्मुलेशन को डेवलप करने में, एक ही नाम से अलग अलग फॉर्मुलेशन है, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से भी रहे। फिर आती है बात कि उनमें से किसको माना जाए, तो इनको समरलाइज करने के लिए फॉर्मुलरी का जन्म हुआ जो 1969 में आई। फिर ये जो फार्मोको एपीआई आई, इसने उस सिंगल ड्रग्स की बात की। अब ड्रग्स की जब बात करें तो स्टैंडर्ड्स की बात, अब आते हैं अपनी सीधी धीरे से अपनी बात की ओर, कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो कहता है कि 168 जो रूल है, इट टॉक्स अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एसयू ड्रग्स, कि क्या ड्रग के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हो गया, हमने बना लिए स्टैंडर्ड, बना लिए स्टैंडर्ड की बात कर ली, लेकिन वो उसको रेगुलेटरी प्रोविजंस में कैसे लाएंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि ये आइडेंटिटी इसकी यही है, कोई रेगुलेशन होना चाहिए। तो दैट वाई इट वाज इंडक्टेड एज अ रूल 168 to making standards as legal standards, and the API and volumes of the API were included also in the Drug and Cosmetic Act, so that the standards are uniformly adopted across the country for these drugs. And फिर बहुत सारे नियम्स आ गए फ्लावरिंग एजेंट के लिए, आर्टिफिशियल एजेंट के लिए, एंड शेड्यूल्स आ गए, GMP आ गए। दिस इज द जर्नी ऑफ द ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन इफ यू कॉल। अब ये देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो अब ये बात हो गई कि टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, लीगल स्टेटस भी अलग हो सकता है। फॉर्मुलरी की हमने फार्माकोपिया के वॉल्यूम का आपके सामने है, 4th वॉल्यूम है। तो ये डिफरेंट पब्लिकेशन है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च CCRS ऑलॉस्पिनाइंग एंड PCIMNH, जो कि पहले PLIM था, जो नाउ इट इज ए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर HPL and PLIM. They have developed the books or the referring document protocol for the testing. टेस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, यस, मॉडर्न मेथड्स कुड बी वेराई। उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल गाइडलाइंस बनाई जिनमें ये टेस्टिंग की बातें आई कि किसको हम फॉलो करें। अगर हम भस्म की बात करेंगे तो कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, या हैवी मेटल की बात करेंगे तो हैवी मेटल की बात करेंगे तो कि हैवी मेटल का इशू बड़ा क्रॉप करता है। मेनी टाइम्स it comes if you in the country and across also, heavy metal आपके ड्रग्स में, आयुर्वेदिक ड्रग्स में बहुत है। शेफर का केस याद होगा, अभी मरकरी को लोग मिनी माटा का बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, एंड वी आर फाइटिंग फॉर ऑल दैट। तो फिर डेफिनेटली एक टेस्टिंग के प्रोटोकॉल होने चाहिए, स्टैंडिंग प्रोटोकॉल होने चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसकी अप्रूवल हो। दोस प्रोटोकॉल शुड बी एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर दैट पर्पस these protocol for the testing was developed and published on behalf of the government of India, Ministry of Ayush, now Ministry of Ayush, but those for Department of Ayush. ये सारे वॉल्यूम्स हैं, यू मस्ट बी नोइंग वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 7 9, शायद 10 भी आ गया है, इसलिए पुराना डेटा है। ये सारे डेटा है फार्माकोपिया कब फॉर्मुलेशन पार्ट 2 में फॉर्मुलेशंस हैं। These are the publication and many of them are open in the public domain. अब ड्रग डेवलपमेंट की अगर बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करें, तो दीज अगर देखें तो रॉ मटेरियल, ये जर्नी स्टार्ट होती है स्टैंडर्डाइजेशन रॉ मटेरियल ड्रग्स। रॉ मटेरियल ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, तो रॉ मटेरियल ड्रग के या एक ड्रग का जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो अदर देन ऑर्गोनोलेक्टिव्स जो है, आपको रस जो देखने में वर्ण कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, केमिकल प्रोफाइलिंग भी हम देखते हैं कि यस, केमिकल प्रोफाइलिंग में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आते हैं उसके, आज एक्सट्रैक्ट का जमाना, वी आर यूजिंग एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, हाइड्रोअल्कोहलिक, अल्कोहलिक वाटर, व्हाट यू कॉल घन्स,
तो SOPs उसकी क्या होना चाहिए, उनके स्टैंडर्डाइज प्रोसेस क्या होना चाहिए, SOP ऑफ स्टैंडर्डाइज फॉर्मुलेशन क्या होना चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेल्फ लाइफ की क्या होनी चाहिए, एंड बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग, डेफिनेटली इसकी बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग, सेफ्टी, टॉक्सिसिटी एंड अप टू द प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज। इनमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब वही बात आती है कि हमारी ड्रग्स तो 1000 ईयर बैक यूज हो रही थी इधर इन ए फॉर्म, अब वो तो जिस फॉर्म में यूज हो रही थी आज से उससे बहुत डेविएशन हो गया। जो हार्डकोर हम आयुर्वेद के लोग हैं वो समझते हैं कि ये तो सेफ है दवाएं, ये तमाम क्वालिटी पैरामीटर्स तो ऑलरेडी हम सालों से गिलोय खा रहे हैं, सालों से अश्वगंधा खा रहे हैं, तो इन तमाम एक्शंस की, इन तमाम क्वालिटी पैरामीटर्स की जरूरत क्या है। बट गोन ऑफ द डेज व्हेन वी वर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, अ लॉट ऑफ वाटर्स हैड फ्लोन डाउन व्हेन यू टॉक अबाउट कि आप जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन लेते हैं, इधर इट इज ए वाटर एक्सट्रैक्ट, इट इज अ काढ़ा, यस, बट you take the hydroalcoholic and if you take other solvents, definitely a portion of the extract is being taken, and definitely for those extract, those purified portion, अभी तो फाइटोफार्मास्यूटिकल्स भी आ गया, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एक प्यूरिफाइड फ्रैक्शन है 5-6 जिसके आते हैं, उसको लेते हैं कंपोनेंट को, तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी और सेफ्टी की बात आती है। यस यस, डेफिनेटली वी हैव द लीड्स अवेलेबल एंड दिस कुड गो फॉर द व्हाट यू कॉल रिवर्स फार्माकोलॉजी। तो दिस ये ड्रग डेवलपमेंट स्टराइजेशन के सारे इंटरमिंगल प्रोसेस हैं। अब वेरी क्विकली हम आ जाते हैं अपनी टॉपिक पे। Being a scholar of the student of the Shastra, definitely my focus comes directly from the Bhasmas. बहुत ह्यू क्राई हुआ, मैंने जैसे कहा, शेफर ने, एक साइंटिस्ट थे अमेरिकन, मेनी ऑफ अस विल लर्निंग, उन्होंने आइडेंटिफाई किया बहुत सारे फॉर्मुलेशंस को हमारे जो कि यूएस मार्केट में थे, एंड ही ह्यूज शोर शराबा हुआ कि these are the heavy metals and all that. But yes, we proudly say we use these many metals and minerals, though maybe 5 to 6% or 10% in this thing. But yes, it could be very efficiently correlated with the ancient nanomedicine, I usually call it. तो भस्मास के लिए what could be, भस्म बेसिकली हम भस्मा कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन भस्मों के लिए what should be क्राइटेरिया, what should be things, भस्म कहेंगे किसको, इसको क्विकली करते हुए फिर आगे टेस्टिंग टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। कंसेप्ट देखें तो चरक संहिता से शुरू हुआ लौहादी रसायन के रूप में, फिर भस्मों का जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन के 7, ये हिस्ट्री है, इट इज जस्ट टू मेक यू एक्विंटेड विद ऑल दैट। रसेंद्र मंगल ने 7th सेंचुरी में कहा, फिर निरुद्ध भस्म का समुच्चय, ये दीज आर द बुक्स, रसेंद्र मंगल समुच्चय, दीज आर रशिया से स्पेसिफिक बुक, इनमें रेफरेंस निरुद्ध भस्म का है। अब निरुद्ध किसको कहेंगे अभी हम बात करते हैं। A site of desired symptom to access the property, अब इन्होंने क्या कहा, मैं इसमें इस स्लाइड में जो मैं I will like to this thing also mention here कि ancient science जो थी ना, observational science थी, they have given by their observation, वहाँ उस समय केमिस्ट्री नहीं इन्वॉल्व थी, लेकिन वहाँ जो आगे हम भस्मों के कैरेक्टर की बात करेंगे, हम जारन मारन वो तमाम टर्म्स आते हैं, they were all experiential science and they are still relevant. बहुत सारे जो प्योर साइंस के लोग हैं या बहुत सारे जो लोग कंटेम्प्रेरी, सो कॉल्ड कंटेम्प्रेरी साइंस को फॉलो करते हैं, दे मे और मे नॉट एग्री, बट आई विद माई ऑल रिस्पेक्ट वांट टू ऐड दिस थिंग कि अगर हमारी जो मेटालिक्स हैं, मिनरल्स हैं, या इवन हमारे जो हर्बल्स हैं, जो प्लांट मटेरियल हैं, जो हम इनको अगर हम जो भी औषधियाँ बताई गई हैं, अगर उनको हम उस डिजायर्ड वे में, उस तरीके से, उसकी एसओपी जो शास्त्रों में लिखी है, अगर उस एसओपी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली डिजायर्ड रिजल्ट आता है और बहुत सारी वो पैरामीटर को वो पार करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जो साइंटिफिक पैटर्न पे हैं, जो साइंटिफिक डिजाइंड है, जो हमने उसको असाइन किया है, दे ऑल फॉल इन दोस क्राइटेरिया, दे ऑल कंप्लाई विद दोस क्राइटेरिया। इसी में एक रेफरेंस मैं आपको बताऊं कि एक स्टडी स्टिल नॉट बीइंग पब्लिश्ड, जैसे आज हम बात करते हैं मेटल्स की, मिनरल्स की, टॉक्सिसिटी की, एंड मरकरी की बहुत शोर करते हैं हैवी मेटल में। तो आई हैड बीन डिपोर्टेड बाय सम कंट्री, डेफिनेटली बताना इसलिए जरूरी है कि ऑथेंटिसिटी के लिए दैट स्टडी, वो मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में आई हैड बीन डिप्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष to work for as a founder member for the
this thing you center in their complementary Indian traditional complementary system के लिए मिसिसिपी में। तो यहाँ से हम 7-8 सैंपल्स जो मर्क्यूरियल्स थे बेसिकली, उसमें सिंदूर भी था, उसमें बृहत्वा चिंतामणि भी था, उसमें कजली भी थी। हमने उसकी आईसीपी में स्टडी कराई, आईसीपी में स्टडी भी बात करेंगे। तो यू विल बी सेटिस्फाइड एनफ टू नो मरकरी की अगर बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मरकरी के साथ साथ जो प्रॉब्लम आती है कि स्पेसिएशन स्टडी हो, जो कि मरकरी के स्पेसीज की बात करते हैं। वी आर अंडरस्टैंड कि टॉक्सिक जो स्पीसीज है मिथाइल मरकरी, इट वाज नॉट फाउंड, आरोवर्धनी भी था मेरे सैंपल में, इन एनी ऑफ द सैंपल व्हिच वाज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। So this is a very big word what I am saying, I am sharing to you. If you talk about the proper sterilization, proper quality control of your material, raw material and processing, definitely none of our sample will fail. And yes, it is still in the process of the publication, but somehow due to some unavoidable reason couldn't be published. लेकिन yes, जो टॉक्सिक स्पीसीज है मरकरी की, वो आपके किसी फॉर्मुलेशन में नहीं पाई गई। तो दिस इज अ गुड, and they were had the visionaries, they understand कि नहीं भस्म अगर बनेगी तो और बहुत सारी चीजें आएंगी। तो बहुत सारी कंफर्मेटरी प्रोसेस भी बताए गए हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस बताए गए हैं जो आगे बात करते हैं कि भस्मों की टेस्टिंग कैसे करें और क्या वो क्वालिफाई करते हैं। क्विकली मेनी ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंडिंग कि भस्म प्रिपरेशन का मेथड क्या होता है, हाउ द भस्मास आर प्रिपेयर्ड। डेफिनेटली जो एंशिएंट तरीका था भस्मों का, वो पुट जो सामने आपके लेफ्ट साइड में है। देखिए एंशिएंट साइंस में क्या हुआ एंशिएंट टाइम में कि जो कुछ अवेलेबल था सामने ना, थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल टू देम, दे वर यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ ड्रग। काउडंग केक्स हैं, काउडंग हस्क भी है, उसमें कोल पाउडर भी है, दे मेक द उपलाज व्हाट यू कॉल, और दे केप्ट इन अर्दन बाउल स्मियर्ड विद व्हाट यू कॉल दिस थिंग, मुल्तानी मिट्टी, कपड़ मिट्टी। उस तरह हम भस्म में बनाकर पुट देते थे। पुट इज नथिंग गिविंग टेम्परेचर। बाद में ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम मफल फर्नेस में भी आए, डिफरेंट टाइप ऑफ मफल फर्नेस आ गई। इट कुड बी मोर इफेक्टिव वे, मोर कन्वीनियंट वे, मोर इन्वेंटर फ्रेंडली, मे बी लाइक दैट। तो ये तरीके थे भस्म बनाने के, जिसमें हम सर्टेन डिग्री टेम्परेचर। आप देखें जब भी फलों की बात करते हैं, जब भी काउडंग केक की बात करते हैं, either it is with husk or some mixed with the husk and cool, the temperature has certain limit। एक 700 से लेके हमारे टीचर दीक्षित जी जो शायद दुनिया में नहीं रहे, झांसर हैं, झांसर बताते थे कि दिस गोज नॉट मोर देन, हमने देखा भी है, सर्टेन टाइम इट टचेस टू 900 और 800, देन इट कम्स इट मोस्टली 700 750। तो इस टेम्परेचर और इट्स ग्रेजुअली कूल्स डाउन। उसी पैटर्न को लेके, उसी इनको लेके फिर इलेक्ट्रिक फर्नेस केम, एंड दिस वे द मेकिंग ऑफ द भस्मा प्रिपरेशन केम इन द एक्शन। एंड ये प्रोसेस मैंने क्विकली दिखाया आपसे, बता के कैसे हमने इजीएस्ट लिया है कि जो सुधा वर्ग जिसको हम कहते हैं, कॉन्च है आपके सामने या शेल है, उनका शोधन कर। देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस आई लॉर्ड इन भस्मा प्रिपरेशन। दिस इज ओनली टू शो यू कि हाउ द पर्टिकुलर मेटालिक्स आर प्रिपेयर्ड, एंड देन वेयर आर द चांसेस ऑफ कंटामिनेशन कुड आल्सो अकर। Could occur at raw material level, it could occur at the purification level, it could occur or may not occur at trituration, what we'll call bhavna, triturating is the herbal juice and making some pellets, and keeping in the put what I was showing you, and the ash comes in picture. So this is simply a way of the preparation of the ash or bhasma for the desired character, for the desired therapeutic action. And in this process, if I go the back, Shodhan is then what could be, it is a purpose. I will very quickly go what is the purpose, disintegrating. उसमें हम क्या करते हैं, disintegrate करते हैं। Finance division में I said for the Shodhan we use triturating of herbal juices। उसमें basically purpose क्या होता है कि जो metallics का या जो herbal metallics का या जो minerals का part है, it gets exposed to the wider surface area। But definitely by giving the kinetic energy, by exposing to certain herbal juices, triturating or you're grinding for a certain period, it makes the enhancement is the bioavailability. Then there are certain nirvap. Nirvap is a heating and dipping, immediate cooling. This is also done in certain metallics. This also gives a decrease the tension. To kill the lusciousness if available.
the brightness increases, reduction in the particle size. There are so many processes are involved when we talk about. Similarly, we do the give the Jalana. This is an intermediary process. Very quickly, I will go. Then I will jump to my topic. It is rational again to the between two. It is rational is oxidation. What we do is certain powders are mixed. Plant materials mixed with the metal, heating in open air. Look, there is a very important point is here in when we make a processing of any our metallics or metallic preparation, mostly two things happens. One is open trituration, open exposure to your parent compound in oxygen that makes oxide, and sometimes also using it with a gandhak or sulfur. So most of the cases, what I have observed and what is also is it happens also, the oxides, most of the preparations are either oxide or the sulfides. To my understanding, the sulfides are the formulations which are less toxic, and also the what we do in the presence of oxygen and oxides. So this all the process is for the facilitating the particle size reduction. In addition to those, when you do Shodhan, Jaran, and Maran, the temperature or Bhasmi, this all gives you importance. It goes you adding at some point of time not only removes the blemishes, but it also gives the chance to get it final particle size and some elemental addition to your parent compound, which give the more desired action. When you go for the navigation or you go for the incineration, it gives you the your final compound, which definitely is not irritant to GI, absorbable form, adaptive, and it easily assimilable to your human consumption. And definitely, when you do all exercise, mixing, triturating, heat, temperature giving, this all makes the particle size reduction. And if you see many of the compounds, if you talk about simply Yashad or zinc, is that many a times when you make certain fraction goes to the size of the nanoparticle, that is a 1 to 100 micron this thing level. And when you see nanoparticle size, when you see the classical parameters, up now I come the you call a sterilization or testing parameter. What we see, what were the classical methods? Definitely brand colors. Varitar. If you see, the people were so knowledgeable. They kept if the your bhasma or your preparation floats on the water. That means it is yes, the bhasma is a required particle size. And again, if it is rekha purta, another character, if it is fine enough to enter your finger furrows, take the two thumb and this your forefinger and just rub in between two. And if it is fill in the finger furrows, definitely the fineness is a test. Those days there was no electron microscopy, there was no such thing for the particle size. They find it a simpler way. And onion sandip, it should be softened, just like a onion. And definitely there should be no lusterousness. When you dip many a times, the luster of this thing can goes. And shukshmat, they have said for the it should be very fine particles. They are the physical observation about how the bhasmas could be. And if you go for the chemical testing, there's what it calls gut rasatva. What this means? Definitely there should be tastelessness. There should be no taste. Matlab, no taste means it is inert. It is inert. So inert means it should not be either acidic, not either alkaline, and nirut. There are other terms have been used. It was smokeless. If the smoke is some carbon is available, something else is available. If you heat it, there should be no fumes coming out of apunarbhav. There are other terms. These are the observational methods. How they said apunarbhav. There are certain things are there. We call in Ayurveda mitra panchak, like ghee, like gunja, like gur. There's a mixture of five things are there. When you make your mix and heat, the purpose it should not irreversible. It should be irreversible. It will not go to parent compound. Say a formulation has been done, it is oxide or sulfide, but it will not go to its parent way. But it will not reduce back to the metallic form. So definitely it should be like that. And nirut, something more clear. And then the pariksha. Very very simple. If you say the coppers and it all, there is a certain this thing, the compounds or formulation which carry the copper, and they added simple observe keeping with the salt, keeping with a lime or you say curd,
and the color should not. Amla Pariksha, the color should not be greenish, not all that. It should, no color should be there. So these were the simple methods. Nirut, where they were using the, what you call this thing name? Mercury. This thing, silver. There should be no weight gain in the silver. It's a complete reaction has been done. So these were the simple methods of their testing, and these are the colors they observed. If why I'm showing, if the a particular bhasma's color is like yellowish, or it is like dhusar color like kas, or it is like blackberry color. So even the colors are there. If you make a particular formulation, it falls in a certain color. Definitely, it shows it has complied. It has made what the desired color is there. All the actions and reactions have been completed. What I was saying, Varitar, I had tried to show you this in the picture. It is floating. If you make a bhasma, it is floating. It is, should be anjan, corallium like. And unam, there is very unique test. It is unam. If you power down your bhasma on a water and keep a dhanya, what you call जो चावल का वो होता है, it floats on. Rekha Purta, what I was talking, it enters the furrows. And Awami definitely this test, what is in a red color, it is done for the formulation which contains of copper. Copper usually have many reactions are there. If it is a proper, it should not give you, when you take this bhasma, there should be no vomiting. It is, so this is done especially for the copper bhasm, swarnamakshik bhasm. These are simpler tests has been done, has been allocated, and is still being practiced. What I was talking, Punarbhav, this is a put away Mitra Panchak we are talking about. This has been written in our classics. Unstable metallic compound in the bhasma can reduce to the metallic stage during this stage by the carbon reduction process. ये हमने साइंस में आपको बताया कि कार्बन रिडक्शन प्रोसेस होता है. अगर इसमें मित्र पंचक डालते हैं तो अगर वो कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया है तो इट विल नॉट रिटर्न बैक. सिमिलरली टू डिटेक्ट एनी अनरिड्यूस्ड मेटालिक पोर्शन, निरुत मैंने कहा कि इससे सिल्वर से करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, दिस इज डन ताम रजत एंड नागभस्म परीक्षा की रैशनैलिटी बिहाइंड कि डज नॉट इंक्रीज द वेट. अगर वेट इंक्रीज कर रहा, ऑक्सीडेशन और सिल्वर, अगर भस्म के प्रेजेंस में कोई सिल्वर का वेट गेन हो रहा है तो डेफिनेटली देयर इज सम केमिकल रिएक्शन, तो देयर इज एडहेरेंस ऑफ एनी फ्री मेटल विद द सिल्वर, तो डेफिनेटली इट वाज नॉट प्रॉपर्ली कुक्ड. ये सिंपल तरीके लिखे गए हैं 1000 ईयर बैक, स्टिल क्वाइट रिलेवेंट. एंड स्मोकलेसनेस, स्मोक नहीं आना चाहिए. व्हेन ऑफ हड़ताल जो है आपका AS2S2 जो है, तो ये हड़ताल भस्म के लिए है कि यस, अगर स्मोक नहीं आनी चाहिए तो इसमें कुछ कार्बन नहीं रह गया. एंड व्हाट आई वाज टॉकिंग द अम्ल परीक्षा, दिस इज फॉर द सोनामाक्षिक एंड ताम. These are the simplest method, day-to-day practice about the testing of the bhasma's metallic or mineral preparations to match the desired character. And if you see superiority of, जो बेसिकली देखिए जो रसशास्त्र का डेवलपमेंट हुआ ना, जो रसशास्त्र का डेवलपमेंट हुआ या मेटालिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ, एंशिएंट लोगों ने ये देखा ना कि यस, कि अगर ये जो ड्रग है, जो फॉर्मूले जो आपका जो पेरेंट कंपाउंड है, इसका ये भी यूज हुआ था कि ये दिस हैज अ पावर लाइक मर्करी, इट हैज पावर टू मेक द गोल्ड, सुपीरियर कर सकता है. तो शुरुआत भी इसीलिए हुई कि ये दवाएं काफी तेज काम करती हैं. अगर ये किसी चीज को अपग्रेड करके गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है तो व्हाई नॉट इट कुड मेक अ बॉडी. अब उन्होंने बहुत सिंपलर, अगर श्लोक की बात करें तो हैज बीन सेड कि पिंड पाटे चयो मोक्षा सचो मोक्षा निरतका पिंडे तो पतते देवी गंधोपि विमुचेत तस्मात् संरक्षेत पिंडम रसैश्च रसायने. तो जो रस से कॉमन टर्म होता है या रसायन का जो कॉमन होता है टर्म, वो क्या करते हैं कि बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए अल्टीमेट जो गोल था उनका ना, जो गोल ये था कि साल्वेशन. आज मटेरियल साइंस का मटेरियल वर्ड का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका ये था कि हाउ टू रीच द साल्वेशन. तो साल्वेशन के लिए बॉडी को फिट रखना है, और वो फिट किससे होगा, रस और रसायन से. तो डेफिनेटली इससे है. और इसके बारे में भी ये था कि दिस इज वेरी स्मॉल डोज. ये अल्प मात्रा, हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या अल्प मात्रा प्रयोजिता अरुचि अप्रसंगता क्षिप्रा मारोगम दायित्वा, ये तमाम श्लोक्स लिखे हैं. तो क्या अल्प मात्रा प्रयोजित्वा मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में. अब क्या है कि इसकी शायद इसके लिए डेवलपमेंट भी इसीलिए हुआ,
क्षिप्रम आरोग्यम दायित्व, अरुचि और प्रसंगता। अरुचि नहीं है, अब जैसे आप कोई काढ़ा लेते हैं, कोई यानी डिकॉक्शंस लेते हैं, कुछ और भी लेते हैं, अगर आप फॉन्ट्स लेते हैं तो देयर आर सम टेस्ट आर देयर, पैलेटेबिलिटी का इशू आता है, तमाम इश्यूज आते हैं। तो शायद इनको ओवरकम करने के लिए हर्बल्स या दीज आर द सॉफ्ट मेडिसिन, प्लांट बेस्ड मेडिसिन और सॉफ्ट मेडिसिन, इनको दूर करने के लिए शायद इसका ज़्यादा ये जो सिस्टम आया, या जो भस्मों का सिक्योरिटी आई, या जो भस्मों का यूज आया, कि ये चूंकि ये इनकी पार्टिकल साइज बहुत छोटी होती है, जैसे मैंने जिंक में बताया कि मैनी नैनो पार्टिकल के साइज में भी अगर भस्मों को अगर प्रॉपरली बनाएं तो ये नैनो मेडिसिन वाला कंसेप्ट भी आता है, और टारगेटेड डिलीवरी के लिए में भी करते हैं। और ये स्टडीज हैज शोन कि ये ब्लड बीइंग ए पार्टिकल साइज लोअर, इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर आल्सो, और डेफिनेटली द डोज एक 125 mg, 500, इवन मैक्सिमम अप टू 500 mg या 250 mg, आइडियली 125 to 250 आर द आइडियल डोजेस फॉर मेनी ऑफ द भस्मास। तो इतनी कम क्वांटिटी में टेस्टलेस हो, क्विक एक्शन हो, डेफिनेटली क्विक एक्शन होता है, तो इनके लिए इसकी ये सिक्योरिटी और ये साइंस डेवलप्ड हुआ। अब आते हैं जब ये ड्रग बन गई तो इसको, ये तो अभी हम बात करते रहे कि व्हाट कुड बी डन फॉर भस्मा स्पेशली मेटालिक्स में। तो अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें, मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न या साइंटिफिक पैरामीटर्स की बात करें, अदर देन दोज रिटन इन क्लासिक्स, ये जो आपके सामने पार्टिकल साइज, टोटल लैश, लॉस ऑन ड्राइंग, पीएच, दिस ऑल आर ओन रेफरेंस इंपॉर्टेंसेस। डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, टेस्ट क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ऑर्डर नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है। कलर्स होंगे, पीएच शुड बी ऑलमोस्ट न्यूट्रल, लॉस ऑन ड्राइंग शुड बी कम, अभी हम बाद में आते हैं। पार्टिकल साइज इट शुड बी कम ऑल एसिड इनसॉल्युबल वैक्स, इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। सारी चीजों की सल्फेटेड ऐश की वैल्यू है, जो हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं, आईआर करते हैं, एक्सआरएफ करते हैं, एक्सआरडी, सेम, टेम, ये तमाम जो टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं, आप यहाँ देखें कि ये तमाम पैरामीटर्स जो मेटालिक्स के लिए हैं। तो मेनी ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस कि मेनी ऑफ द, नॉट ऑल, मेनी ऑफ द केसेस जो हम कंपाउंड को ब्रेक कर देते हैं, जो कंपाउंड जो आप एनालिसिस करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस में करते हैं, तो वहां पे जाके बहुत सारी चीजें आपकी वो मतलब की भी नहीं आ पाती, या वहां एक क्वेरी होती है। So there are certain methods that have been developed to analyze those your product in totality. अब जैसे लॉस एंड ड्राइंग देखिए, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल, वाटर ड्राइंग ऑफ फ्रॉम द ड्रग। लॉस एंड ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट सामने है, ये साइंस का टेस्ट की बात है। हाई मॉइस्चर क्या करता है, स्ट्रिकिंग होती है, पिकिंग एप्रोप्रिएट फ्लो, बैंड आता है। मॉइस्चर क्या, लो हार्डनेस होती है, फ्राइबिलिटी होती है, कैपिंग एंड लेमिनेशन, दीज आर द, इसकी रैशनल है। लॉस ऑफ ड्राइंग की ऐसे बात कर दी जाए तो इसका, हम अगर सिर्फ भस्म की बात करें तो भस्म के वो जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे तो शास्त्रोक्त पैरामीटर हैं, इनके पैरामीटर्स को भी हम देखते हैं अपने हमारे फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए। सिमिलरली टोटल ऐश वैल्यू, अब ऐश होगा ज्यादा तो क्या होगा, जैसे भस्म बनाते हैं आप, जब मेटल्स बनाते हैं, तो मेटल्स बनाते हैं तो क्या होगा, उसमें ऐश कंटेंट आ, जिसको राख कहते हैं आप देशी भाषा में। यूजुअली फॉस्फेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, सिलिका होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं, जो ड्रग के साथ आ जाते हैं, जो प्रोसेसिंग में आ जाते हैं, सम टाइम उसके आते हैं, तो ये एडल्ट्रेशन की हो जाते हैं। ज्यादा ऐश होगी तो क्या होगा, तो कार्बन ज्यादा आएगा, तो डेफिनेटली वो मे और मे नॉट गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। टोटल ऐश वैल्यू जो आपकी है, सबकी एक पैरामीटर्स है। मैंने इसको आपको इसलिए नहीं बताया कि ये आपके सिर्फ जान लेने के लिए ही इंपॉर्टेंट है। आप सारा पैरामीटर देंगे तो इंडिविजुअल भस्मों के बारे में, इंडिविजुअल फॉर्मुलेशन के बारे में, वाटर सॉल्युबल ऐश कितना होना चाहिए, एसिड इनसॉल्युबल ऐश कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें सबके सारे दिए हुए हैं कि वाटर सॉल्युबल ऐश ज्यादा होनी चाहिए जो कि आपकी जीआईटी में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, एसिड इनसॉल्युबल ऐश जो होनी चाहिए उसकी भी पैरामीटर्स है, सारा रिलेवेंस है। वाटर सॉल्युबल ऐश देखिए, टोटल वाटर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल एग्जॉस्टेड बाय द वाटर। तो ये हम देखते हैं, इसके टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं। सिमिलरली एसिड इनसॉल्युबल ऐश, पार्ट ऑफ टोटल ऐश इनसॉल्युबल। अब अगर एसिड इनसॉल्युबल ऐश ज्यादा होगा तो क्या होगा, अब देखिए अगर आपकी भस्म में एसिड इनसॉल्युबल ऐश ज्यादा होगा, सिलिका कैल्शियम ज्यादा हो रहा है जो मैं दिखा रहा हूं, अब सिलिका कैल्शियम ज्यादा होगा तो जबकि डेफिनेटली वो कहीं नहीं कहीं जाके ड्रग आपकी एक्युमुलेट होगी, वो डिजायर्ड एक्शन नहीं देगी। और जो आपका पीएच, जो डाइल्यूट एचसीएल, जो आपके पेट का जो पीएच है, उसमें वो सॉल्युबल नहीं हो रही है, इनसॉल्युबल हो रही है, तो इट मे नॉट गिव द व्हाट द डिजायर्ड गोल ऑफ द थेरेपेटिक्स। अब वाटर सॉल्युबल ऐश की बात करते हैं सिमिलरली, तो वाटर सॉल्युबल ऐश क्या है कि जितना पानी में या पेट के जो आपका
जो एनवायरनमेंट है जितने अच्छे से घुल जाती है तो उतना एब्जॉर्बेबल कैपेसिटी बताती है कि ड्रग। अब ये आ गए कि अब उसको अगर ड्रग की स्टडी करने की बात करें, अगर भस्मों की स्टडी करने की बात करें, भस्मों के देखने की कि क्या हो रहा है अंदर, तो ये सिंपलेस्ट जो मैं समझता हूँ कि अगर प्लांट के लिए जहाँ HPTLC है, TLC है, सिंपलेस्ट फॉर्म TLC है, तो उसी तरह XRD को हम मानते हैं कि डिटरमाइंस द अरेंजमेंट के जो आपने भस्म बनाया। एक्सरे को डालते हैं, ये इंस्ट्रूमेंटेशन आपके सामने पिक्चर है, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, मैं ये साइंस की चीज है, केमिस्ट्री के लोग अच्छा बताएंगे, मटेरियल साइंस के लोग अच्छा बताएंगे, लेकिन यस उसका रैशनल तो हम बता ही सकते हैं आपको कि डिटरमाइंस, अगर एक्सरे को डालते हैं तो क्रिस्टल्स के जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है वो डिटरमाइन करता है कि जो एक सैंपल एग्जामाइन कर रहे हैं उसका क्या है, स्टैंड मटेरियल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सैंपल की प्योरिटी कितनी है, डिफरेंट फाइंड ऑक्साइड्स, और क्या ये जो ऑक्साइड बना है, जो जैसे अगर आप जिंक की बात करें, जिंक एक्सआरडी करेंगे, अगर आप एक्सरे डिफ्रैक्शन करेंगे तो जिंक एक्सरे डिफ्रैक्शन में आपको, अगर आप प्रॉपर आप जो पुटों की संख्या या मफल फर्नेस से बनाते हैं या देशी पुट्स में बनाते हैं, अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो 80-90 मोर देन 90% आपको जिंक ऑक्साइड मिलता है। अगर आप जारन करके बनाते हैं, रॉ मटेरियल के साथ उसका ट्राइचुरेशन भी करते हैं तो और सम पीक्स, यहाँ डिफरेंट पीक्स आते हैं, वहाँ सम पीक्स अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ सर्टेन पॉइंट इट मे गेट रिड्यूस टू द जिंक, तो आपको बहुत सारे जिंक के तो जिंक ऑक्साइड के पिक्स मिलेंगे, सम पॉइंट आपको जिंक के भी पिक्स मिल सकते हैं। तो ये डिस्टिंग्विश करता है एक आपके रॉ में जो आपका फिनल प्रोडक्ट बना है, सेम EDX द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स-रे स्पेक्ट्रोग्राफी, ये क्या करता है, ये हाई रेजोल्यूशन स्टडी करते हैं, और ये क्या करता है डिफरेंट फेजेस इन मल्टी फेज सैंपल में किस किस फेज में है, शोज द स्पेशियल वेरिएशन इन केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन बना है उसमें क्या है, सेम के EDS के हम यूजुअली मेटलर्जी वालों से लोगों से अपने मेटालिक सैंपल के कराते हैं। तो दीज आर द फ्यू, इन एडिशन जैसे ICP में स्टडीज हैं, ये भी हम कराते हैं सैंपल की, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो डिफरेंट उसमें एलिमेंटल एनालिसिस भी करते हैं, डिफरेंट स्पेशिएशन स्टडीज भी करते हैं कि सभी स्पीसीज, जैसे मैंने कहा कि मरकरी की जो इथाइल मरकरी दैट इज नॉट टॉक्सिक स्पीसीज, तो डिफरेंट स्पीसीज को हम देखते हैं, आर्सेनिक के डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो विद वे देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेशन। मैंने वेरी क्विकली आपको, अब मैं आगे बढ़ गया क्योंकि और 2-3 पॉइंट्स और आपसे शायद शेयर करने हैं जो मैं इधर उधर से कहीं से इकट्ठा किया हूँ, बट yeah definitely it gives you the raw material analysis ki how it should be done, and next is a Aasav and Arishta। क्योंकि आप देखें बहुत सारे अगर बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो डोजेस फॉर्म है ना, 20 से 25 डोजेस फॉर्म कॉमनली यूज होते हैं, उनमें राइट फ्रॉम द सिंपलेस्ट चून, आसव, अरिस्ट, भस्म, पिस्ती, ये डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं, तो हर फॉर्मुलेशन के बारे में बात करना शायद नहीं होगा, और शायद मेरे पास इस समय इतना मटेरियल भी नहीं है कि मैं 2 घंटे आपको बता सकूं, लेकिन यस इट कुड बी डिस्कस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर ऑर्गेनाइजर्स टाइम देंगे तो वी कैन डिस्कस इन डिटेल। तो मैं क्विकली आता हूँ आसव अरेस्ट पे। ये बड़ा यूनिक प्रोसेस है। देखिए मैंने आपसे उस शुरुआत में कहा था कि आवर एंशिएंट साइंटिस्ट हैड विजडम एनफ, उनको मालूम था कि किसका काढ़ा बना, अरेस्ट है, उनको मालूम था कि बहुत सारी चीजें जो आसोरिस्ट में है, जो कि अल्कोहल में, जो आसोरिस्ट में सेल जनरेटेड होगा तो उसमें सॉल्युबल होती, तो उन्होंने इसी तरह उन्होंने स्नेह पाक किया, तो उन्हें मालूम था कि कौन सी चीजें फैट सॉल्युबल होती हैं, तो उसने स्नेह पाक में ले आए, स्नेह कल्पना ले आए, और कौन सी चीज, कौन सा चूर्ण, कौन सा ड्रग कितना हार्ड है। कुछ ड्रग आप देखते हैं सामने, कुछ हर्ब्स आर देयर, सम श्रब्स आर देयर, सम ट्रीज आर देयर, सम प्लांट्स आर देयर, डिफरेंट कैटेगरीज है बॉटनी के अकॉर्डिंग, देखें सो मेनी कैटेगरीज आर देयर। तो अब किसमें कितना पानी मिला के काढ़ा बनाना है, किसको, उनको मालूम था। किसी में उन्होंने देखे अति शुष्क द्रव्य है तो उसके लिए कितना पानी है, अगर मध्यम खर द्रव्य है तो उसका कितना, मतलब हार्डनेस और उसकी कम है, और बहुत ज्यादा शुष्क द्रव्य है तो उसमें हार्डनेस के हिसाब से एक्सट्रैक्शन जो बताया है। तो सिमिलरली आसव और किसके बन सकते हैं, क्या पर्पज है वो बताया। देखिए कितना अच्छा है, द्रव्य सुचिर कालस्य द्रव्य यत् सदितम भवेत् आसव रेस्तु भदेस्त प्रयुच्यते वैश्वजितम, ये तो श्लोक में बताया। अब देखिए आशा, और इसके बारे में पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ऋग्वेद से शुरू होता है। अगर आप देखें तो इसकी जो कंसेप्ट था वो, ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, सोमरस नाम से
फिर अथर्ववेद में अरिष्ट नाम से आया, फिर डिफरेंट आते आते यहाँ पे सारम संहिता में जनरल गाइडलाइंस आई। यहाँ से अगर हम जंप करते हैं, अगर लास्ट में आते हैं तो इधर देखते हैं कि जनरल गाइडलाइंस आई, फिर योग रत्नाकर ने इनके मध्य कल्पना बताया। AFI में अगर देखें, फाइनली अगर नीचे आ जाते हैं, ड्यूरेशन कितने टाइम में बनता है, तो ड्यूरेशन को सबसे पहले किसने किया, भाषा रत्नावली ने बताया कि व्हाट शुड बी ड्यूरेशन ऑफ द, कितने देर में बन जाएगा। बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन इसको डिटेल यहाँ बताया। अब AFI देखें, फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, आयुर्वेदिक फॉर्मूला, दिस इज अगेन आई से द बुक ऑफ द रेफरेंस। तो यहाँ पे अब इसी बात करते करते अगर ये बात करें कि बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारे हम इनके चरक, सुश्रुत, आपके सामने दिख रहा अष्टांग हृदय, कश्यप, सारंग संहिता, बहुत सारे टेक्सुअल रेफरेंसेस हैं। तो बात आती है कि हर रेफरेंस में, जैसे मैंने कहा ना कि आरोग्यवर्धनी के 7 तरीके हैं, 9 तरीके हैं, या चौपरास के 2-3 तरीके हैं, चरक कुछ और कहता है, भैंस रत्नावली कुछ और तरीका कहता है, तो किसको फॉलो करें। और फिर अगर हर आदमी अपने तरफ से बनाएगा तो उसकी कॉस्ट भी अलग होगी, उसका डिजायर एक्शन भी अलग होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी अलग होगा, और मे बी डिजायर्ड इफेक्ट तो होगा ही अलग। इसके लिए ही ये फॉर्मुलरी और फार्माकोपिया का जो जन्म हुआ ना, AFI के रेफरेंस में कह रहा हूँ, इसीलिए है कि अगर चौपराश जो स्टैंडर्ड जो है हमारे यहाँ शेड्यूल, एक फर्स्ट शेड्यूल बुक है। एक्ट की अगर बात फिर आ जाते हैं एक्ट पे, एक्ट की बात करें, वहां तो सर्टेन लिस्ट ऑफ द बुक्स हैं जहां की कहा गया कि इन किताबों में अगर जो मेथड है या जो जिस तरीका जो अवेलेबल है, जो इंग्रेडिएंट है, वही आयुर्वेद या सिद्धा या यूनानी एसिड ड्रग है। आज की डेट में रेगुलेशन इंप्रूव हो रहा है, अमेंड हो रहा है, लेकिन आज की डेट में जो एक्ट प्रिवेल करता है उसमें यह है कि जो इसमें है वही आयुर्वेदिक ड्रग है। और सिमिलरली अगर फॉर्मुलेशन की बात करें, अगर AFI का वो फॉर्मुलेशन है तो ये फॉर्मूला विल बी फेलर। अगर कहीं कंट्रोवर्सी होती है तो यू शुड रेफर। और शायद प्रोसेस भी इसीलिए कॉमनेस ड्रग को लेके AFI API शुरू हुआ कि जो रेफरेंस सैंपल या जो रेफरेंस मेथड बनाए गए हैं, ग्रेजुअली हम उन्हीं को अडॉप्ट करें। तो इस तरह अगर देखें तो AFI में लगभग 40 से के आसपास आशा और अरिष्ट के मेथड डिस्क्राइब किए गए हैं। और ये क्या है, अब देखिए, ये मैंने जैसे बताया ना कि ये एक फर्मेंटेड प्रोसेस है। अब फर्मेंटेशन की बात करते हैं, आशा और अरिष्ट एक फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है, अगर इसको देखें तो इनकम्प्लीट शुगर को होता है, इथेनॉल बनता है, हम सब जानते हैं, शायद हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। और एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट सेल के प्रेजेंस में होगा, और यूजुअली इथेनॉल ही बनता है। दिस इज सेल जनरेटेड। और मैकेनिज्म दिया है कि इसमें जाइमेज होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट से जाइमेज करते हैं। ये एक मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है फर्मेंटेशन की। और फर्मेंटेशन की ये हिस्ट्री है कि फर्मेंटर, पहला फर्मेंटर कब बना, 20 लीटर कैपेसिटी को बना, तो ये फर्मेंटर इन्होंने ईस्ट को शुरू किया। फिर उनके बाद ये डेवलपमेंट, एक फर्मेंटेशन का उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की। और फर्मेंटेशन में क्या आता है, कल्चरल, अब फर्मेंटर भी होता है। अगर मॉडर्न साइड में उधर जंप करते हैं तो फर्मेंटर एक होता है, एक बायोरिएक्टर होता है, और एक हमारा जो फर्मेंटेशन देसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम वैट में करते हैं, हम उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो फर्मेंटर क्या है, अगेन वो सम क्लोजली रिलेटेड है, समथिंग जो बाद में डेवलप हुआ, जो फर्मेंटर के रूप में हो गया। ये सील्ड रहा, स्टराइल रहा, हमारा भी स्टराइल होता है। हम जो धूपन करते हैं वहां भी हम जब बनाते हैं, जब हम ट्रांसफर करते हैं मटेरियल को फर्मेंटेशन के लिए, तो डेफिनेटली वहां हम भी स्टराइल करते हैं, वहां हम भी सील करते हैं उसको। तो दीज मेथड्स एंड इन्वॉल्व फॉर द मेकिंग। आज वो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या करते हैं, डेयरी में, फूड में, बिवरेज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हम जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, हम आशा और अरिष्ट में यूज करते हैं, जो हमारे क्लासिकल फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। ये बायोरिएक्टर क्या है, जहां हम बायोऑर्गेनिज्म को लेते हैं, मोस्टली ईस्ट लेते हैं या बैक्टीरिया को लेते हैं, मोस्टली एनिमल सेल को भी लिखा है कंट्रोल कंडीशन में। तो ये इंडस्ट्रियल वे है, आपको बस दिखाने के लिए, रेफरेंस के लिए। यहाँ है टू कन्वर्ट इनटू यूजफुल बायो प्रोसेस, बायो कन्वर्जन कॉर्न इनटू इथेनॉल। बेसिक इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ज्यादा यूज होता है, बहुत सारे यूज होंगे। अब हमारा देखिए फर्मेंटेशन, ये सेल्फ फर्मेंट जो आशा और अरिष्ट बनाते हैं, डेफिनेटली हम जानते हैं कि सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल एज ए प्रिजर्वेटिव। क्या है इसमें दो फायदे हैं कि बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने कहा ना, प्लांट के जो सॉल्युबल नहीं होते हैं वो यहाँ होते हैं। इनकी सेल्फ लाइफ, आप जानते हैं कि अल्कोहल के बारे में या अल्कोहलिक प्रिपरेशन के बारे में, अल्कोहल आल्सो वर्क एज ए व्हाट यू कॉल एज ए सर्विंग एज ए मीडिया फॉर द स्टोरेज। तो इसकी सेल्फ लाइफ बहुत, इनफाइनाइट कहना तो आपको मैंने लिखा जरूर है, लेकिन इनफाइनाइट कहना तो शायद कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन डेफिनेटली दे हैव अ वेरी लॉन्ग सेल्फ लाइफ। एंड डेफिनेटली आप
we all understand it is a quicker absorbed because alcohol has a very equal and bioavailability absorb तेजी से है और bioavailability भी होगी. तो these are अब अब बनाते हैं आसोरिस्ट. क्विकली बताऊंगा 2-3 मिनट के लिए. एक ड्रग होती है डिकॉक्शन के लिए, एक होते हैं द्रव लिक्विड प्रिपरेशन के, स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं इसमें, प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं, एडिशनल ड्रग डालते हैं, और संधान फर्मेंटर्स. बहुत सारे जगहों में ईस्ट यूज करते हैं, धात की पुष्प यूज करते हैं एज ए फर्मेंटर टू इनहांस द फर्मेंटेशन. धात की पुष्प में हम जानते हैं कि टैनिन्स होता है ज़्यादा, ईस्ट जो फर्दर होता है. अब ये प्रिपरेशन है, इसमें हम ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि टाइम इज ऑल्सो. धात की वुडफोर्डिया फ्रुक्टियोसा जो होता है, फ्रुटिकोसा जो होता है, ये इट इज एडेड टू इनहांस द. 1 से 3 महीना लगता है, डार्क प्लेस में लगते हैं जहाँ की एयर की एब्सेंस, विदाउट मच सर्कुलेशन ऑफ द एयर, फ्यूल डिकेंटेड एंड फिल्ड इन द बॉटल एंड सीड. देखिए अगर ये प्रोसेस टाइम यही फिर आ जाती है कि क्यों टेस्टिंग की जरूरत है. अगर भीड़ के चलते बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस होती हैं, फर्मेंटर मिलाया, ईस्ट मिलाया, बनाया, सब कुछ बोतल में सील करके भेज दिया, तो होता क्या है कि अभी तो फर्मेंटेशन पूरा हुआ ही नहीं, समटाइम द बॉटल में ब्रेक और सम टाइम इट मे और मे नॉट गिव द डिजायर्ड रिजल्ट. तो इसके लिए ही इन तमाम के लिए क्लासिकल जो स्टरलाइजेशन के प्रॉपर हैं मेथड्स हैं. फर्मेंटेशन कैसे हम देखते हैं, ये मैंने कहा ना, जो वुडन वैट्स हैं, जो हमारे जो पात्र हैं, इसमें सागौन की लकड़ी, आजकल हाई लेवल इडेबल ग्रेड पॉलीमर के वो बनते हैं वैट्स, बड़े बड़े जैकेट्स बनते हैं. उनमें हम जो मैंने बताया ना कि इनमें हम देखते हैं कि क्या फर्मेंटेशन है. तो उसके मेथड्स हैं, सिंपल मेथड्स हैं कि एक तीली जला के देखा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं तो बुझ जाएगा, या उस एयर को पास किया तो वो फिर लाइम मिल्की हो जाएगा. आप जानते हैं कि दिस इज सिंपल, वैसे हिसिंग साउंड आ रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मतलब फर्मेंटेशन हो रहा है. मिल्की कर रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड स्टिल गोइंग ऑन. तो ये टेस्टिंग के, ये हमारे एशियन मेथड्स है टेस्टिंग के कि हाँ यस प्रोसेस चल रहा है, कंप्लीट हो गया, बन गया, फर्मेंटेशन हो गया. तो जो प्रक्षेप द्रव जो आपने डाला इन्हांस के लिए, उसके लिए जो आपने उसके क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए डाला, वो सिंक कर जाएगा. इफर्सन नहीं हुआ है, साउंड बंद हो जाएगी, बर्निंग ऑफ द कैंडल. अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रही है तो बर्निंग खत्म हो गई, कैंडल चलती रहेगी, बर्निंग बुझेगी नहीं. अल्कोहल का फ्लेवर आने लगे, ओडर आने लगेगा, टेस्ट अगर करना चाहेंगे, और लाइन वाटर निगेटिव आएगा. तो इसका मतलब फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया. दिस आर सिंपल मेथड ऑफ फर्मेंटेशन टेस्टिंग. अब धाती मैंने कहा ना, टेनिस ज़्यादा होते हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली धात की पुष्प जो एशियन मेथड है. अब तो सीधे ईस्ट डालने की बात है, ईस्ट स्ट्रेन डालते हैं, इस स्ट्रेन को आइसोलेट भी किया है. तो ये दीज आर द ये डिफरेंट संधान द्रव्य है, जैसे धात की पुष्प है, वुडफोर्डिया है, मधुका है, कीड़ो है, जो बेस मटेरियल ईस्ट को भी डालते थे. वेरियस मेथड्स आर बीइंग अडॉप्टेड. एंड अब आते हैं कि ये तो चलिए, these are the methods what being adopted, see is being adopted by the Asian method of the testing. अब आते हैं आसाव और इस जिसको मैं कहता हूँ कि these are the alcoholic preparation. आप सब जानते हैं कि what is the difference between आसाव और इस, I will not go in detail. तो इनके फिजिकल है, pH होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, टोटल सॉलिड होगा, ऑर्गेनोलेप्टिक्स आप जानते हैं टेस्टिंग के क्या मेथड्स हैं, अल्कोहल कंटेंट, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ethanol, methanol, self life. These are the parameters. This needs to be evaluated when you are testing the final product. फिर अल्कोहल कंटेंट देखते हैं, क्या इसमें अब इथेनॉल कंटेंट कैसे देखेंगे, कितने डिग्री कैसे देखेंगे. दिस आर द मेथड. किस स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर इतनी है तो करस्पॉन्डिंग इथेनॉल कंटेंट कितना होगा. ये सारे पैरामीटर साइंस से लिए गए हैं कि इतने स्पेसिफिक ग्रेविटी में 25 डिग्री पर इतना इथेनॉल कंटेंट होगा. तो दीज आर द मेथड्स व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम द साइंस कि कैसे करते हैं. आप इतना ही जान लीजिए कि ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है. फिर है कि आस और इसके बहुत सारी चीज़ें आती हैं. आपने एक बार शायद सुना भी होगा कि एक बार बहुत सारे लोग नॉर्दर्न इंडिया में कुछ आयुर्वेद की दवाएं खा के बेहोश हो गए थे. तो पर्पस क्या, उसका क्या रीज़न था? उसके रीज़न यही था कि उसमें जो मिस संजीवनी सुरा माल यूज द पीपल आर यूजिंग इस मेडिसिन को यूज करने के लिए, इसका इंडिकेशंस है, पीपल माल यूजिंग, इसको एज ए एडिक्शन के रूप में ले रहे थे. तो इसके लिए काफ़ी उसमें फिर काफ़ी कुछ ह्यू एंड क्राई हुआ. तो फिर एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए. रूल 161 में देखें, पैकिंग, जैसे कर्पूर ऑफिस है, अहिफेनासो है, ओपीएम का हम मनाते हैं, तो इनकी पैकिंग साइज भी हमने बता दी कि भाई इससे ज़्यादा पैक सेल ही नहीं होगा, क्योंकि डोज कम होगी तो माल यूज नहीं होगा. अब जो मैंने कहा कि इनमें सर्च जनरेटर अल्कोहल होता है, जो फर्मेंटेशन से होता है, जो इथेनॉल बनता है, अगर साइंस की बात करें कितना होगा,
तो अगर आप पैरामीटर नहीं देंगे तो हम कह देंगे कि भाई हमने बाहर से अल्कोहल परसेंटेज डाल दिया। तो मैक्सिमल है, मैक्सिमम 16% है, यूजुअली 10 से 12% होता है, ये समझ लीजिए। मैक्सिमम 16% अलाउड है, वो भी में संजीवनी शिरा में, महाद्राक्षासव में 16%, नॉट मोर देन दैट। यू कैन नॉट ऐड द अल्कोहल। और इनकी भी पैकिंग साइज बना दी, महाद्राक्षासव को 120 ml, विद संजीवनी 30 ml, बॉटल्स नहीं देंगे। So these are the rule 161 talks about. These are the definitions. These are the advocacy how to protect the maluse of that. Definitely, why these are very popular: longer shelf life, palatability, quick absorption, high therapeutic efficacy. These are the points of consideration why these have been for the enhanced acceptance, other than those are crude forms. Again, आते हैं तेल घी की बात करते हैं। बहुत जल्दी से मैं खत्म करूंगा, शायद मुझे कुछ इशारा ऐसा है कि 7 बजे तक का। तेल घी की बात करते हैं। एसेंशियल इंग्रेडिएंट उसमें क्या है? पुष्प, कुछ समकलक द्रव्य होंगे, फिर कुछ स्नेह द्रव्य होंगे, फिर पानी होगा, द्रव्य होंगे। ये 3 बेसिकली शारंगधर के हैं, इनको समझ लीजिए। इनसे ही लेके हम ये जो हम स्नेह अपना बनाते हैं, इसकी ये मेन है। और जनरल मेथड प्रिपरेशन क्या है? ये अनुक्तमान है। यूजुअल एक नॉर्मल सा है कि 1:4 इंटू ये है, 1 पार्ट कल्क द्रव्य माने कि जो आप प्लांट मटेरियल लेते हैं, फिर उसको 4 पार्ट लेते हैं जो स्नेह मटेरियल है, and definitely the liquid boiled together, reduced to quantity. These are all the methods of the preparation. This may not be important, but just giving you an insight about that. इसको मध्यम अग्नि, ऑलवेज आयुर्वेद में बहुत कम जगहों पे तीव्र अग्नि का वर्णन किया जाता है थेरेपेटिक पर्पस पर। मैक्सिमम जो करते हैं मध्यम अग्नि, माइल्ड, मॉडरेट हीट, नॉट माइल्ड। नॉट तीव्र करेंगे तो जल जाएगा, तो डेफिनेटली हीट प्रिपरेशन। स्नेह पाक कल्क का है, काल क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी टाइम, अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस है, नेचर ऑफ द। मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें सब एक्सपीरियंशियल था कि अगर आप जो द्रव्य लेते हैं उसके लिए अगर स्नेह करते हैं, मूल्स अगर इट इज़ द रूट्स 12 days, इट इज़ द मिल्क 2 days, इट इज़ मास रस 1 days, दिस ऑल हैज बीन डन गिवन। एंड सिद्धि के लक्षण है, वर्ती बनना चाहिए, उंगली शब्दहीन होना चाहिए, स्निग्ध होना, ये सारे फेनोद्गम है, फेन शांति है। बड़ा वो टिपिकल बताया है। तेल के लिए अलग बताया है, वर्चुअल एसिडिटी टेस्ट के लिए बताया है, फोम अपेरेंस इन तेल, जैसे फोम अपेरेंस जो फेनोद्गम कहते हैं ना कि उसके उसमें पेन का उठना है, व्हेन द अनसैचुरेटेड या फैटी एसिड डबल बॉन्डिंग है, ऑक्सीडेशन होता है, generation of the lower fatty acid, and finally the phenogam. These are the this thing for the tail, and similarly for the Ghita, where we all sorry, Fen Shanti we call. Sneh Pak. Again, if you talk that therapeutically, Am Pak, Badam Pak means Kacha Pak, निर्वीर अग्निवाद जो है कि इसके क्या क्राइटेरिया है, खर पाक में किस काम के लिए, मृदु पाक, डिफरेंट जो ट्रीटमेंट के जो है, जो आपका फिनल प्रोडक्ट है, फिनल प्रोडक्ट को जो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। अगर मैंने कहा था ना मीडियम फायर की बात है, मीडियम प्रिवेंशन की बात है, वो सर्वकर्म आप देख रहे हैं मोस्टली और यूज व्हेन इट इज अ फायर इज हाई, खर पाक जहाँ अभ्यंग की वो एक्सटर्नल यूज को बताया। देखिए बड़ा, और अगर लेस फायर से बना मृदु पाक है, कोई औषधि मृदु पाक है, तो न से कम इंटरनल यूज कर रहे हैं। देखिए कितना साइंटिफिक वे है कि मृदु पाक औषधियां, मृदु पाक स्नेह पाक जो है वो इंटरनल यूज के लिए, वहां खर नहीं कहा, वहां मध्यम नहीं कहा, हम मध्यम को कहा। तो दीज आर द सिंपलर इंडिकेशन, सिंपलर द क्वालिटी पैरामीटर्स वी शुड बी ऑब्टेन, वी शुड बी obeyed, we should be observed while indicating, while preparing the medicine for a particular therapeutic condition. आदित्य पाक भी है, ये सब एग्जाम्पल की बात है कि उसको आदित्य पाक में, सन के आदित्य में सन भी लोग की किसमें काशीश निशा मुस्तकर सकता सर्टेन डक्स में, काशीश आदि घृत में सन रेस के समय में कहते हैं 7 days। ये सब आपके डिफरेंस की बात हो गई। गंध पाक भी है, जम मूर्छित स्नेह के क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, एसिड वैल्यू क्या है, रेंसिडिटी क्या है, तो आगे आएंगे। सल्फोनिफिकेशन भी वह टिल, अब हम यूजुअली कहते हैं कि टेल लिगेंड्स होते हैं, वी ऑल नो लिग्नेंस होते हैं। लिग्नेंस क्या होता है? एस्ट्रोजेंस होते हैं, प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजेंस होते हैं, दे आर एंड दे एक्ट एज ए एंटी कोलेस्ट्रॉल एजेंट। तो दैट इट इज फाउंड इन टिल और सिसमी ऑयल, सिसमीन मोस्टली हमारे यहाँ यूज तेल को यूज करने में बात करते हैं, जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ तिल के तेल की बात की गई है। द पर्पस ऑल बिहाइंड इज lignans and sesame, they are protected to your liver from the oxidative stage and also protected from the anti-cholesterol agent. And this thing, what do you call, these activities are there. So अब तेल की, अब
तैल कल्पना या घृत कल्पना की बात करें तो स्टरलाइजेशन या टेस्टिंग, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, मैंने कहा वेट देखेंगे, लॉस एंड ड्राइंग देखेंगे, सल्फिफिकेशन वैल्यू देखेंगे, एसिड एसिड वैल्यू देखेंगे, ये डिफरेंट स्टर वैल्यू देखेंगे, सल्फिफिकेशन वैल्यू देखेंगे, विस्कोसिटी देखेंगे, टीएलसी करके देखेंगे। देयर आर डिफरेंट टेस्टिंग। एसिड वैल्यू की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब एसिड वैल्यू की क्या रिलेवेंस है, सिंपली आप इतना समझिए, एसिड वैल्यू की क्या रिलेवेंस है, फ्री फैटी एसिड कितना है ये बताता है। वैल्यू एक्सप्रेस एज पर द परसेंट ऑफ फ्री फैटी एसिड, बोलिए ये देखते हैं कि कितना उसमें फ्री फैटी एसिड है या कंपाउंड फॉर्म में है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, एसिड वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सल्फिफिकेशन वैल्यू, इट टॉक्स स्पेशली फॉर द एडल्ट्रेशन। अगर आप इतना समझ लें, रिप्रेजेंट्स डिफरेंट मेथड्स हैं। इट मेजर द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल फैटी एसिड। सल्फिफिकेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला है, दिस इज may not be good for you, but for the understanding person you must be acquainted with all terms at least. Iodine value, number of the gram of oxygen absorbed. Decrease in iodine value shows the decrease in number of double bond and indicates oxidation of the oil. Oil का oxidation हुआ है। iodine value उसके certain parameters है, उसके certain values है। ऐसा नहीं कि iodine value लिख दिया हो गया। किस में iodine value ज़्यादा होनी चाहिए, किस में कम होनी चाहिए। How it should be done, should like this. Peroxidized value है, इसकी भी importance है। ऑक्सीडेशन मैंने बताया कि peroxide, ये सारे कहीं ना कहीं जब ऑयल की बात करेंगे, कितना ऑक्सीडेशन हुआ, कितना रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेटिव इंडेक्स कितना है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल सल्फाइड्स की बात करते हैं तो पेरोक्साइडाइज वैल्यूज की है। टेस्टिंग के पैरामीटर्स हैं। रैशनैलिटी, तेल कल्पना की क्या एक्ट एज ए बेस। बहुत सारी दवाओं में तेल कल्पना का यूज है। एक्सट्रैक्ट वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल। बताया तेल में क्या है, जो वाटर सॉल्युबल भी आ गया, लिपिड सॉल्युबल भी आ गया, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट आ गया, सल्फाइड बढ़ गई, इनहांस द ड्रग एब्जॉर्प्शन डेफिनेटली। चूर्ण कल्पना आप सब जानते हैं, मेमोरी, ये क्लासिकल स्टरलाइजेशन के मेथड्स हैं। अतिशुष्कम द्रव्यम, सुपिष्टम, वस्त्रगालितम। क्विकली मैं आगे बढ़ता हूँ चूर्ण के बारे में। ये सारे मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं। ऑर्गेनेटिक कलर्स क्या होना चाहिए, फिजिकल इवैल्यूएशन, लॉस ऑफ ड्राइंग, ऐश, ऐसे सारे में देखिए, ये समझ लीजिए बहुत सारे चीजें, लॉस ऑन ड्राइंग, टोटल ऐश, एसिड इनसॉल्युबल ऐश, ये पीएच, ये हर जगह जहां जहां एप्लीकेबल है। पार्टिकल साइज, अब तेल का पार्टिकल साइज तो नहीं निकालेंगे, तो चूर्ण का पार्टिकल साइज आएगा। मैश नंबर से देखते हैं। क्वाथ करने, सिंपल चूर्ण करना है तो ये है, क्वाथ के लिए चूर्ण करना है तो मैश नंबर। ये मैश नंबर जो है ना, उससे साइज के लिए भी इंडिकेट होते हैं। मैक्रोबियल कंटेंट देखते हैं। देखिए जितने चूर्ण में मैक्रोबियल्स खूब होते हैं, इंट्रोबैक्टीरियल, फंगल काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेस्टिसाइड चूर्ण में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एफ्लोटॉक्सिन B1 B2 G1 G2, ये हम देखते हैं। फिर इनकी सबकी शेल्फ लाइफ है। तेल की भी शेल्फ लाइफ है, पाउडर की भी, चूर्ण की भी शेल्फ लाइफ है। यूजुअली 2 मंथ लिखा है, लेकिन यूजुअली 6 मंथ से 1 साल मानते हैं। सिमिलरली तेल घी की भी मानते हैं, जब तक रेसिडिटी नहीं आ जाए। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। So these all parameters need to be tested, and it could not be explained in a such short time. But yes, वटी गुटिका, अब चूर्ण के बाद और ये डिराइव फॉर्मुलेशंस हैं, उनके भी सब टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं। Probably I am getting out of time. फिर साइज अब देखते हैं कि अब इम्प्रूव करते हुए टैबलेट में भी आ जाते हैं। ये सारे डिराइव फॉर्मुलेशन है। टैबलेट की साइज डिटर्मिनेशन, आप सब स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, इनके बीच में डालते हैं टैबलेट्स। दिस आर द मेथड। अब आप टैबलेट की हार्डनेस देखते हैं कि इसको कितनी इसकी हार्डनेस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो पास कर जाएगा। जैसे गूगल को हम देखते हैं, ना, तो गूगल को हम यूजुअली कहते हैं चबा के खाइए, कि गूगल में गम रेजिन्स होता है, जिनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। पासेस मेनी टाइम्स जीआईटी में डिजायर्ड होता ही नहीं, वो एक्शन आता नहीं, तो इसलिए उसकी हार्डनेस भी देखते हैं। नॉर्मल टैबलेट की हार्डनेस देखा है, NTL 4 किलोग्राम पर सेकेंड, वो पुश करके देखते हैं। तो दीज आर द मेथड। फ्राइबिलिटी टेस्ट है कि फ्राइबिलिटी टेस्ट ड्यूरेबिलिटी है, मतलब चलने में ही टूट गया तो उसको भी देखते हैं कि कैसे फ्राइबिलिटी टेस्ट की नॉट मोर देन 1%। अगर टूटता है उसको चला के देखते हैं। फाइब्रिलेटर होता है टेस्टर्स। डिसइंटीग्रेशन भी होता है, घुला के देखते हैं कि अगर बहुत, जैसे गूगल को ही ले ले तो पास आउट कर गया, मतलब डिसइंटीग्रेट ही नहीं हुआ आपके जीआरटी में जाके, तो उसके भी अनकोटेड के अलग हो गए। गूगल के देखिए सामने दिख रहे हैं, गूगल के है कितना टाइम ड्यूरेशन वेरी कर रहा है, देखिए 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। तो दीज आर द मेथड्स। मीडियम भी सबका कॉमन है, एक पे कोटेड में सीएल डाल दिया। तो दीज आर द कंडीशंस। सारी चीजों को देखने के लिए मॉडर्न पैरामीटर्स भी डाला, इन एडिशन टू अवर यूनिफॉर्मिटी 25%, 20% पर टैबलेट। 20 टैबलेट को वेइंग करते हैं, वेट में भी ज़्यादा, इतने से ज़्यादा वेट गेन होती है तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। इसी तरह सेल्फ लाइफ को भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
टाइम जो फाइटो जो आपके प्रोडक्ट है, अगर एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन पे हम देखते हैं कि उसके रिलेटिवली डिजायर्ड चीजें इसमें हैं, सेंसरी, केमिकल, फाइकोकेमिकल, माइक्रोबियल कैरेक्टर्स, अगर वो डिजायर्ड टाइम में वो सब रहते हैं तो वो उसकी लेमैन्स लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो सेल्फ लाइफ है। साइंस की बात करें तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऑफ फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रिमेन्स विद अप्रोप्रिएट स्पेसिफिकेशन है। एक सर्टेन ड्यूरेशन में अगर वो ठीक है, या बेस्ट, जैसे आजकल देखते हैं ना फूड के लिए कहते हैं बेस्ट बिफोर यूज, तो इट शुड फॉलो दोज जो डिजायर्ड आप एक्शन, जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, वो चाहे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो माइक्रोबियल कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो इंटैक्ट है तो उसकी सेल्फ लाइफ कही जाएगी जितने पीरियड तक। उसमें बहुत सारे फैक्टर होंगे, टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, लाइट होगी, कंटेमिनेशन होंगे। अब सेल्फ लाइफ के भी है लॉन्ग टर्म, रियल टाइम, जिसको एक्सीलरेटेड, इतने टेम्परेचर पर तो इतना स्टेबल, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें और इसका वो बढ़ा देते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, दैट कुड बी एक्सीलरेटेड स्टडी। फिर टाइम जोन भी अलग अलग होते हैं। देखिए ह्यूमिडिटी एक्सीलरेटेड में कर दिया 40+2 टेम्परेचर, लॉन्ग टर्म में ड्यूरेशन है, ये आपके सामने शेल्फ लाइफ एक इंस्ट्रूमेंटेशन है। दीज आर द मेथड्स, दीज आर द मेथड टू एवेलुएट। ये एक सिंपलेस्ट मेथड है, उसको हम फिर निकाले, इतने ड्यूरेशन रखने के बाद निकाले, फिर हम टेस्टिंग किए। इस वजह से वी यूजुअली डिटरमाइन, अब सबकी सेल्फ लाइफ बना दी। जैसे मैं कह रहा था, अर्क की 1 साल हो गई, चूर्ण की 2 साल मान ली, जबकि कहीं कहीं 6 महीने शास्त्रों में है। क्वाथ चूर्ण, वटी, बंजन की 3 साल मान ली, गुटिका क्वाथ की मान ली। तो ये शेल्फ लाइफ भी इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग के लिए। जैसे गुगुल की मान ली 5 साल, लवण की, क्षार की मान ली, रस औषधि 10 ईयर्स। होता क्या है कि जितने मेटालिक मिनरल कंपाउंड होते हैं 10 ईयर्स दे दिया, लेकिन शास्त्रों में ये भी है ना कि एक बार दोबारा पुट दे के यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आसव लिस्ट की भी जो मैं बात कर रहा था, दीज आर द सेल्फ लाइफ गिवन। अब बात करते हैं क्विकली बिफोर वी गो टू कंक्लूजन, स्टैंडर्डाइजेशन या टेस्ट या प्रॉपर मेथडोलॉजी मिनिमाइज द बेस्ट टू बेस्ट वेरिएशन। क्या करेगा, इंश्योर करेगा, बार शुरू में भी कहा था, सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। पॉलीहर्बल स्टरलाइजेशन प्रोडक्ट लाइव विद स्टरलाइज गुड रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल अगर अच्छा होगा, गुड एग्रीकल्चर, गुड सारी प्रैक्टिसेस गुड वाली जो है अगर हुई, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिसेस, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, गुड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, तो डेफिनेटली वो रॉ मटेरियल जो फाइनल गुड होगा, प्रोडक्ट आएगा, उसमें वो जो डिजायर्ड इफेक्ट है, डिजायर्ड क्वालिटी क्राइटेरिया है, उनको पास करेगा और इट विल बी थेरेपेटिक एक्टिव। This is probably very quickly I try to sum up the short all about the what I could show you in quick duration. बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डेटा है, हर की अपनी इंपॉर्टेंस है, जो मैंने क्विकली वो आपसे शेयर नहीं की कि पेरोक्साइड वैल्यू कितनी होगी, सल्फरिफिकेशन वैल्यू कितनी होगी, ये सारे हैं। मेरा जो द पर्पस वाज बिहाइंड यू टू शो द ग्लिम्स कि यस दीज आर द पैरामीटर्स, दीज आर द इंपॉर्टेंस of any of the processes, testing processes का क्या importance है, and how the following such processes we can ensure कि that product is good for the use। और वैसे भी कहते हैं ना कि रस शास्त्र के लिए, स्पेशली रस शास्त्र के लिए और पर्टिकुलर मेटल्स एंड मिनरल्स की ना, न दोषाणाम, जैसे कि इतनी ये क्विक एक्शन होती हैं, इसलिए इनका होना न दोषाणाम, न दुष्टानाम, न पुंसाम परिच्छेद, न देशस्य, न कालस्य। तो इसे हमने ये कह दिया, मतलब हमने अपनी मेडिसिन को इतनी सुपीरियरिटी वैल्यू दे दी, या ये कहते हैं रस विद्या परा विद्या, मतलब इसको हम इतना मैक्सिमाइज करते हैं ड्यू टू इट्स क्विकर एक्शन, ड्यू टू इट्स थेरेपेटिक एफिकेसी, कि ये वन ऑफ द, अगर हमको दोष भी नहीं मालूम है, दोष भी नहीं मालूम है, ये एक कहा गया है, इट इज आइडल, एक फ्रेज है कि अगर वेरी क्विक एक्शन लेना है तो आप इन मेडिसिन को लें, और इन मेडिसिन को लें अगर ये प्रॉपरली टेस्टेड है, प्रॉपरली मेड है। मैं बार बार कहता हूँ स्टिल विद द कॉन्फिडेंस एनफ कि अगर प्रॉपर मेथड्स जो हमारी एसओपीज है, टेक्स्ट में टेक्सुअल एसओपीज है, अगर उनको फॉलो करें, रॉ मटेरियल थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो, तो डिजायर्ड इफेक्ट आता है और डिजायर्ड रोल आता है। विद ऑल दिस, thank you for giving me again opportunity to come on this platform. I'm also thankful, before I can stop my speaking, I'm thankful to my student Yashika and my colleague Sakita. She's a senior assistant professor. Both have just what I am showing you, they have presented by them to showcase you what I have heard
or learned in my journey. Thank you. Thanks a lot to all of you. Thank you, sir, for very informative and interactive session. And I hope that all participants get benefited from today's session. Now, this is the time for query session. I request to all participants that please raise your hand or write your query in your chat box. I'm not seeing any chats. There could be two people. There could be two types of the people. Either the people has got full understanding or they didn't have taken anything. या तो सब कुछ मिल गया या कुछ भी नहीं मिला. I don't know. Anyway. Dr. Sushant Kumar. Dr. Sushant Kumar, please unmute yourself and ask your query. Yeah. Dr. Sushant Kumar, I sent you the unmute request. Please unmute yourself. I'm not able to see what somebody has given in chat. Let me see. There is some query in self. Could you please? Dr. Sarayu, Avinash, I sent you the unmute request. Please unmute yourself. Yeah, somebody has acid insoluble ash. Yeah, some other time we can talk in detail. Right, sir, definitely, sir, definitely. I will request, if possible, to organizer, please share, give me one other chance where I can in detail. Definitely, sir. It was an amazing session, sir. Definitely, we are in next after that we are planning for a new program with Ayurveda and Allopathy and as a combination. Definitely, sir. Definitely. Because the purpose, I just the flag the issues, iodine content, acid insoluble ash, but definitely each has their own difference, and these are the own response. मैं तो जल्दी में आपको बोल गया कि ये भूली नहीं. It is not like what science says all about. It should be detailed and with all differences. So I will request, if you organizer allow me some other day, I can talk on detail on all. Give me some times on these all parameters. I have asked my question in chat box what he is saying. Could you please recite that one, organizers? Dr. Priyanka, I sent you the unmute request. We have time up to 8. Right, sir. Dr. Priyanka. Yes, sir. Good evening, sir. The session was good, very good. I want to ask two questions. One is how can we determine the Siddhi Lakshanas for Takrarishta and analytical parameters for Takrarishta? Specifically, as they are not specified in the text. Yeah. Okay. And the next question is. Yeah. Okay. Yeah, please. And the next question is, sir, as you told us while this drug development procedure, you told us that we have to go for the extracts. Ma'am, your voice is breaking. Sorry, if could I understand, first question I understood, yes, takrar is what should be criteria. To me, specific criteria is not given as per my understanding in FI, but the this generalized criteria could be followed. Yes, specific some work and it should be published. But what second point you said, I am not able to say. Ma'am, please repeat your query. Dr. Priyanka, ma'am, please repeat your second query. Can you have blood value assess I am to unmute? How to determine Dr. Sushant Kumar, again I sent you the unmute request.
I think there's a problem. We can stop. It is not. PPT is not visible. I'm seeing. Dr. Divya Yadav. I have a doubt. I need a Hello. one touch. Yeah. Hello, namaste, sir. Yeah. Sir, actually, I was asking कि जब हम बात करते हैं कि हमारी भस्म बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, एसिमिलेट होती है, तो किस लेवल तक जाके एसिमिलेट होती है? क्योंकि अगर अपन हैवी मेटल टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो वो मतलब कहाँ तक वर्क होती है, और अगर अपन जैसे अगर मतलब उनके नेगेटिव इफेक्ट्स तो तभी आएंगे ना जब वो मतलब अगर अपने HGS बॉन्ड में अगर हम दे रहे हैं, जैसे रस सिंदूर है या फिर कोई भी अपनी भस्म है, अगर वो सल्फाइड फॉर्म में जा रही है और अगर वो ऐसी मतलब वो ब्रेक डाउन हो रही है, Hg फ्री फॉर्म में जा रहा है, तो ही वो जाके हैवी मेटल टॉक्सिसिटी कर पाएगा। देखिए दूसरा देयर इफ यू टॉक पर्टिकुलरली, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन का, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली बीइंग इन द सेक्टर ऑफ मेनी इयर्स, जो फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं आप एब्जॉर्प्शन की, जो फार्माकोडायनेमिक्स तो सब समझते हैं, हम सब समझते हैं ये दवा दिया ये काम हुआ। जो काइनेटिक्स की बात है स्टिल इट कुड बी अ काइंड ऑफ ए हाइपोथेसिस कि यस डेफिनेटली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो कि जो भस्में बनती हैं उनके साथ जो 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 पार्टिकल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट या जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऐड होते हैं, द एक्शन इज वन ऑफ दोस। क्योंकि 2-3 स्टडी BHU में भी हुई है जहाँ की एज इट इज ड्रग माइस में पास आउट हो गई है, देयर वाज नो वेट गेन और वेट लॉस। तो जो प्रोसेस ऑफ द ट्राइचुरेशन, दैट इज द नीड ऑफ साइंस। जो ट्राइचुरेशन करते हैं, जिन प्रोसेस में जो जो एलिमेंट्स जो माइक्रो एलिमेंट्स ऐड होते हैं, दीज आर गिविंग द डिजायर्ड इफेक्ट। और काइनेटिक्स की जो डेफिनेटिव कहना, एटलीस्ट मैं डेफिनेटली आई कैन नॉट से वेरी कन्फर्मेटली कि वेयर दीज आर ऑब्जर्व्ड एज ए साइंटिफिक पैरामीटर की बात करें, अदरवाइज देयर एक्शंस आर देयर। ये क्वेश्चन है whether the trituration method prepares 3x and XL potency in homeopathic can be utilized to triturate bhasma. If so, that it can be continuous smaller doses. Yes, it could be very good. Somebody has asked, it is a Dr. SS. This is a very good question. Yes, it needs to be explored. होम्योपैथी के बारे में कुछ कहना हमारे लिए तो अथॉरिटी नहीं है, लेकिन यस वहाँ भी जो ये प्रोसेस है कि स्ट्रोक्स, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, डेफिनेटली द काइनेटिक एनर्जी कम्स इन ए पिक्चर, वहाँ पे डेफिनेटली इट कम्स इन एक्शन। And the metal nano carriers loaded with the phytomedicines are different from our bhasma. Somebody has written how differentiates Siddhi Lakshman Taklaris and the metal bhasma nano carriers loaded with the phytomedicines or bhasma triturated with organic liquids. Look there, if you talk, somebody has asked how it is different from the phytomedicine from bhasma triturated organic acid. ऑर्गेनिक लिक्विड के साथ करते हैं, तो ऑर्गेनिक लिक्विड के साथ जहां तक की बात है ना, वो जाता नहीं है। मेक वेरी श्योर, इतने हाई टेम्परेचर पे ना वो चीजें जा नहीं पाती, वो सारी चीजें इतने हाई, इवन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट तो जा सकते हैं, लेकिन जो लिक्विड्स के जो वो नहीं जाते इतने टेम्परेचर पे। नथिंग गोज बाय 700, 800 और 900 टेम्परेचर। Dr. Sneha? Yes, sir. Yes, please ma'am, ask me. हाँ सर, आयुर्वेद में अभी सूक्ष्म औषधि का भी उपयोग किया जा रहा है, तो उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है, मतलब जो आपने मृत संजीवनी सूरा के बारे में बताया, तो कुछ औषधियाँ वो जो बना क्वाथ का सूक्ष्मीकरण करके या फिर कुछ लिक्विड का सूक्ष्मीकरण करके, तो उसमें अल्कोहल कंटेंट डालते हैं, तो मृत संजीवनी सूरा का उपयोग करने के लिए बोला गया है। या फिर होम्योपैथी में जो डाइल्यूशन सॉल्यूशन रहता है वो उसमें यूज करते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि वो सेफ है या मतलब वो लीगली हम वैसे औषधियाँ यूज कर सकते हैं या नहीं, उसमें अल्कोहल कंटेंट कितना रहता है, देखिए, उसके दो बारे में चीज कुछ है। लिखा हुआ है? होम्योपैथिक के बारे में जहां तक बात है, वहां तक तो मैं शायद अथॉरिटी नहीं हो सकता। हाँ, आयुर्वेदिक ड्रग रेगुलेशन की बात करते हैं अगर, तो ये नहीं अलाउड है। ऑर्गेनिक अगर हमारे ड्रग रेगुलेशन की बात करें, यहाँ मैं कह सकता हूँ, बट होम्योपैथी के जो एक्शंस हैं या जो जैसे उनके मोड ऑफ एक्शन है, इवन मोड ऑफ एक्शंस ऑफ मेनी ऑफ द आवर ड्रग्स इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड। तो होम्योपैथी के बारे में तो आई डोंट हैव अथॉरिटी, बट रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ सच ड्रग्स इन फॉर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स,
Yes, it is not allowed. You cannot use और सर जो टैबलेट्स या भस्म रहती है उसका भी सूक्ष्मीकरण करते हैं, तो उसमें होम्योपैथी के बारे में मैडम आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं मालूम है। होम्योपैथी का नहीं सर, हाँ आयुर्वेद का ही जो सूक्ष्म औषधि करके हाँ बनाते हैं, तो डेफिनेटली। कुछ ऐसे सुवर्ण कल्प जो रहते हैं उनका सूक्ष्मीकरण करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो करते वक्त उसमें वो लोग होम्योपैथी में जो एक सैक्लैक पाउडर रहती है, सैकेराइड पाउडर, तो वो ग्लूकोज का ही फॉर्म रहता है, हाँ वो उसमें ऐड करके उसका सूक्ष्मीकरण करते हैं, हाँ तो वो अलाउड है क्या? वो देखिए, अगर वो फिर वही बात आ जाती है ना, जो ऐसे तो मेल प्रैक्टिसेस में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। अगर वो ग्लूकोज पाउडर के साथ एक्ट कर रहे हैं, या अगर लैक्टोजेनिक या जो आपका ये है जो मिल्क प्रोडक्ट के यूज कर रहे हैं, तो दैट आर ऑल अलाउड, बट दैट विल फॉल अंडर अगेन अंडर पीआरपी कैटेगरी। जो भी अगर आप एक ये बात तो बहुत क्लियर है, अगर रेगुलेटरी पॉइंट, वहां मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि आई हैड बीन एड्रेसिंग मेनी इश्यूज ऑफ ड्रग्स इन मिनिस्ट्री, वहां मैं क्लियर हूँ। अगर डोजेस फॉर्म में इवन आपने उसका टेम्परेचर जो मेथडोलॉजी दिया है, अगर आप जैसे आप देखते हैं कि गंधक शोधन है सिंपल, अगर आप शोधित गंधक को यूज करते हैं 7 बार, जो क्लासिकल मेथड है, या आरोग्यवर्धनी आप मार्केट में देखते हैं, आरोग्यवर्धनी सिरप आता है, तो अगर आरोग्यवर्धनी जहां वटी दिया है आपने उसको चेंज करके सिरप कर दिया, तो अगर एक्ट की बात करेंगे जो प्रिवेलिंग एक्ट है, तो दैट इज ऑल प्योर पी मेडिसिन, वो आपकी प्रोप्राइटरी मेडिसिन के कैटेगरी में जाएगा, वो कभी भी क्लासिकल मेडिसिन के कैटेगरी में नहीं जाएगा। सिमिलरली आपने देखा होगा ना, सिलमेरिन को बहुत सारे लीवर वाले यूज करते हैं, लाइसेंस भी मिलता है। सिलमेरिन का बहुत जगह आयुर्वेद में लाइसेंस मिलता है, और इवन बहुत सारी ऐसी चीजों का जिनका के डिस्क्रिप्शन फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है। अब जो मैं उस समय कह रहा था, तो वो तो अलाउड ही नहीं है। हाँ, मेल प्रैक्टिस कर या वो इंग्रेडिएंट, वो कंपोनेंट हमारे किसी टेक्स्ट में जो हमारे 56 बुक्स हैं, अगर उनमें कहीं आता है, अगर वो कहीं इवन कोल्स्ट्रम है जो पीयूष है, अगर उसका रेफरेंस आता है और आप पीयूष से लेके कुछ दवा बनाते हैं, आप उसके इवन ग्लूकोज के लेके, ग्लूकोज का इंडिकेशन आता है शर्करा का, अगर आप करते हैं तो वो प्योर पी मेडिसिन है, इट इज अलाउड, बट अदर देन दोज थिंग्स अगर आप करते हैं तो दैट इज नॉट अलाउड। और फिर वही बात मिथ संजीवनी शुला वाली जो बात थी, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, अगर आप परसेंटेज ऑफ अल्कोहल जो आपका अलाउड है डोजेस फॉर्म वाइज, वो 16% से ऊपर है ही नहीं है, तो आप अगर 70%, 80% अल्कोहल इंटरनल यूज को करते हैं तो वो नेवर अलाउड है। होम्योपैथिक की बात नहीं, सिर्फ आप अपने एएसयू की बात करें तो ये तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी क्लियर। ओके सर, थैंक यू फॉर योर या Dr. Sarayu Avinash Kure. Dr. Sarayu, please unmute yourself and ask your query. Dr. Sarayu. Dr. Kranti R. Vardhan. तिवारी सर ऐसा करिए, तिवारी सर एक ऐसा कीजिए। सर जी, गुड इवनिंग। या Anupam ji, it was a great insightful presentation, thank you so much. See, I have a question, like if we take Brihadvata Chintamani, there are many multiple bhasmas in it, like Swarna Bhasma, Rajita Bhasma, Loha Bhasma, Amrita Bhasma. But we know that Swarna Bhasma is Rasayan, and minutest things also we know, which are told in the Shastra. But when research is being done, the overall compound effect, जैसे कि आपने बोला है कि ऑक्सीडेटिव एक्शन है, तो रिडक्शन एक्शन है, तो वोलेटाइल कंटेंट, ऐसा कुछ रिसर्च में है ओवरऑल ड्रग के ऊपर, वो सब रिसर्च कहाँ पे मिल सकता है?
जैसे कि there are two things are there very quickly कि as such अगर रिपोजिटरी की बात करें तो ये इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं डिफरेंट फॉर्मुलेशंस के पास. When I was at RAV as a director, I was working. I tried to compile such theses and such metallic theses and compile, probably bringing back to NIA or it will continue with RAV in a better form. तो इनकी जो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो ये तमाम जो साइंटिफिक इंटरवेंशंस के साथ या अदर देन हमारे क्लासिकल रेफरेंस के साथ जो भी काम होते हैं इनकी एक रिपोजिटरी जैसा काफ़ी कम रहा है. पहले एक जामनगर में कोशिश की गई थी कि सच करते हुए एक रिपोजिटरी हो. तो एज ऑफ नाउ तो मुझे ये कहना बहुत मुश्किल है, मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं है 28-30 साल रहने के बाद सेक्टर में कि इंडिविजुअल वर्क का कहाँ है. यस, रेफरेंस अगर आप कुछ चाहते हैं वी कैन सर्च अपॉन एंड वी कैन हेल्प यू एंड दिस प्लेटफॉर्म कुड बी गुड. मेरा क्वेश्चन ऐसा है सर कि लाइक बृहद्वार चिंतामणि जो भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं ना, they write बृहद्वार चिंतामणि and it's been consumed in India like anything. तो ऐसे चीजों के ऊपर कुछ काम हुआ है तो हुआ है तो कहाँ पे मिल सकता है? मैं यही कहा तो मैंने स्टैंडर्डाइजेशन पर्टिकुलर अगर ड्रग की बात करें, पर्टिकुलर एक ड्रग की बात करें तो ऐसी कोई रिपोजिटरी मेरे नॉलेज में नहीं है कि जहाँ बृहद्वार चिंतामणि, वसंत कुसुमाकर, कोई भी एक ड्रग ले ले, इवन आरोग्यवर्धनी, ये इंडिविजुअल एफर्ट्स हो तो मैं बता सकता हूँ जयपुर में इतना काम हुआ या जामनगर में इतना काम. लेकिन एक कंपोजिट वे में अगर आप जानना चाहें कि कहाँ है, कहाँ से मैं रेफरेंस मटेरियल ले सकता हूँ, ये शायद मेरे लिए in such case we are failing at that point only, no sir, at the research level we are failing at that point. It may be like this, it could infer like this. हाँ, individually if somebody asks कि हाँ मुझे ये वर्क है तो institutions are there, they can support you. जैसे NIA में अभी मैं हूँ तो NIA में आपको I can revert you कि हाँ इस पे काम कितना हुआ है या नहीं हुआ है. सिमिलरली BHU में कितना काम हुआ, जामनगर में या हासन में कितना काम हुआ, इंडिविजुअल एफर्ट में तो है. यही मैं आपको बताता ना कि एक थीसिस का मेटालिक्स पे या रसशास्त्र पे या भेषज कल्पना पे एक कंपाइलेशन की कोशिश की थी, वो शायद अभी अधूरा रह गया, शायद ड्यू कोर्स में हो जाए. हमने जो फाइनल टाइटल क्या थी और फाइनल कंक्लूजन क्या निकला और डिस्कशन के साथ. हाँ सर, इसी के ऊपर मेरा क्वेश्चन और एक ऐसा क्या है कि अगर see if at all we do not know how this compound is working, then हमारे ग्रंथ में जो भी बोला गया है वो पैरालिसिस में देना है नहीं तो कहीं और देना है, then we all are failing, right sir? We are so not, that is the point, sir, that's the point you have raised without knowing its the kinetics or without look this is this question, yes, it is a very good question you have raised and this carries a very important aspect. But this requires a lot of work to be done on a number one for the pharmacokinetics, where your drug is going, what is being absorbed, what is being not absorbed, and what is the polyherbal formation. Because if you talk about the herbal formation, you have the metallics also. There, each metallic component has its own therapeutic activity, and it may be their action could vary, and that is synergistic. Similarly, like the polyherbal formation, there could be n number of the constituent phytoquestion, and their synergistic way could be so many ways it could be resultant. So similarly, these inferences are there, and until unless, that's why the reason behind the hues and cries there about the action of such drugs. हम अभी मैं बात कर रहा था ना कि अपशोधन करते हैं. I didn't go in detail on those issues. तेले तकरे गवा मूत्र हिनाल कुलथजे. अब बात करते हैं तो you will astonish to see कि इन पे भी हमने so called scientific work नहीं किया है कि या किया है तो वो public domain में कम आया है. कि इन इंटायर प्रोसेस का काम क्या है? ब्रिटलनेस बढ़ाना, ब्लेमिशेस को रिमूव करना या एड ऑन करना या पार्टिकल साइज ही घटाना. तो व्हाई टू यूज ऑल दिस मीडिया? वी कैन डू या सम एलिफेटिक या कुछ और कंपोनेंट एड ऑन होते हैं. ये क्या देखना है? तो स्टिल ये वर्क कहीं अगर हुआ है तो आइसोलेशन में हुआ है. शोधन का जो प्रोसेस है, शोधन का मतलब प्यूरिफिकेशन नहीं है. हम सब जानते भी है और प्रूवन भी है कि आप 100% अगर आप कॉपर ले, 100% जिंक ले और 100% शोधी औषध ले तो एक्शन थेरेपेटिक नहीं आएगा. लेकिन ये yes, it should be brought, it is very nice and it needs to be floated on all the such floras. What I can add this only. Yes sir, yes. But definitely so I'm here, at least my presence is here. If you such any information is required, it definitely in being a faculty. Thank you sir. आपका फोन नंबर एक बार हमारा बिल्कुल ये हमारे ऑर्गेनाइजर शेयर कर देंगे definitely, and mails also, and you can directly write to me also. There's no issue at all.
I'm here in the Russia's department. You are free to Sir, call me. at Free to least, jo, see, whatever the basic medicines that we have been writing very regularly, at least उसके ऊपर कुछ काम चला तो कुछ काम Yeah, हुआ तो उसके the बारे knowledge में should be मालूम shared. करना अच्छा है सर. Knowledge must be shared. Yes, sir. Knowledge Yes, must be shared. thank you Definitely. so much, sir. Thank you so Thanks much. a lot. Should we close for the day, Tiwari ji? Yes, sir. Yes, sir. Definitely, all queries are answered. Mostly queries are answered. If there is any more query, then you can mail us. I will provide the mail ID in the chat box. And Yes. thank you very much, sir, for the very informative, very knowledgeable session. I hope that all participants get benefited from today's session. Now, I would introduce today's chairperson, Professor Nisha Gupta, ma'am. Ma'am is currently working as a professor and head, Department of Samhita and Knowledge Siddhanta in IIT Jaipur. Ma'am is having 23 years of UG and 20 years of PG teaching experience and also 20 years of experience in research. Professor Nisha Gupta ma'am has guided 21 PG scholars, 2 PhD scholars and co-guided 2 PG scholars for research and published 60 articles and 1 book. Ma'am has given 10 paper presentation as an author and 30 paper presentation as co-author and attended 60 workshops and webinars. Professor Nisha Gupta ma'am actively participated in WAC 2008 Home Pavilion Committee and initiated new historical concept of Ayurveda, rejuvenation by modes of sages and made a talk of town. Professor Nisha Gupta ma'am has given AIR recording and broadcasting on various important topics like गर्भावस्था में रखें खान पान का ध्यान and परिचर्चा on घटता लिंगानुपात कितना घातक in 2012. Ma'am has given live broadcasting in All India Radio on the subject seasonal allergies and their prevention in Ayurveda for 1 hour in 2019. Now, I would like to request Professor Nisha Gupta ma'am to share her views on today's session and kindly sum up today's session. Please, ma'am. नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार और सर को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। सर का इतना सुंदर व्याख्यान था, इतना सेटिस्फैक्टरी व्याख्यान था कि मैं इसमें शायद कोई प्रश्न बचा नहीं और बहुत सारे प्रश्न जागृत हो गए। उसके लिए मैं मानती हूँ, इसके लिए मैंने शब्द दिया क्वेस्ट एंड थर्स्ट एलिविएटिंग एंड पेसिफाइंग लेक्चर। मतलब बहुत से प्रश्नों को शांत किया सर ने और बहुत से जागृत भी हो गए और बहुत सालों के बाद मैंने इतना शानदार व्याख्यान सुना रसशास्त्र में और हम बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि सर हमारे ही साथ हैं, हम इनको कभी भी सुन सकते और बहुत कुछ जो हमारा दब गया है, छुप गया है, सर उसको जागृत करेंगे। बहुत सुंदर व्याख्यान था सर, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि हम सब ने आपको सुना। और सर के बारे में कुछ भी कहना गलत होगा, कम होगा, क्योंकि सर के बारे में मैंने बहुत सुना है और आज तो मैंने सुन लिया उनको। सर मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपकी, बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं कुछ कहूँगी नहीं क्योंकि आपके लिए कुछ कहना अपने शब्दों को व्यर्थ करना है क्योंकि आपके लिए शब्द नहीं है, आप शब्दों से परे हैं। नहीं ज्यादा हो गया मैडम ये ज्यादा हो नहीं गया। सर, नहीं बिल्कुल सर, नहीं, मैंने आज आपको पहली बार सुना है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो एक शेयरिंग करता हूँ। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। शेयरिंग ऑफ द नॉलेज जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। बहुत पता लग रहा है, आपका नॉलेज का पता लग रहा है कि आपने कितनी साधना की है, आपने सीखने में, सिखाने में और बहुत सारी एक्टिविटीज में सब सर इन्वॉल्व है। सर पहले आरएवी में थे, वहाँ डायरेक्टर थे सर, यहाँ आने से पहले सर को हमने तब भी सुना था, उनके बारे में सुना था, लेकिन सर को ऐसा नहीं सुना था मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैडम, थैंक यू टू ऑर्गेनाइजर्स। मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि रस शास्त्र पे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं फ्रैंकली मैं एक्सेप्ट करता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब नहीं जानता। आई फ्रॉम बेस ऑफ माय हार्ट एक्सेप्ट, फुली एक्सेप्ट। इन क्वेश्चंस को आप और डिबेट कराएं और साइंस के लोगों को बुलाएं, रस शास्त्रियों को बुलाएं, हमारे जैसे अभी स्टूडेंट को भी बुलाएं, तो वी कैन हैव अ डिस्कशन। बहुत सारे इशू मेटेलिक्स पे लेके आप मेटलर्जी के लोगों को बुलाएं, आप साइंस के लोगों, प्योर आप लोग एक्सपर्ट हैं, साइंस के लोगों को बुलाएं और इसको वी कुड डिस्कस। कुछ तो आए, ये तो सारी बातें किताबों में लिखी हैं जो मैंने बताया। इतना अच्छा क्वेश्चन है तकरार रिस्क के बारे में। बहुत सारे आइसोलेशन में वर्क हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं जो आते ही नहीं है, जिनको हम भी नहीं जानते। हम तो वही जानते हैं जो हम समझ पाए हैं। इसको जरूर करें। वंस अगेन थैंक यू।
Thanks for थैंक giving. यू सर, थैंक यू सर। हम इस पर पुनः हम इसके बारे में सर हमारे कोऑर्डिनेटर जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर सिया है, तो सर उनसे इस बारे में जरूर परिचर्चा करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे अपने मैनेजमेंट को इस बारे में अवगत कराएं कि बहुत जल्द हम इस बारे में रस शास्त्र और जो भी आयुर्वेद की विधाएं हैं उनके बारे में परिचर्चा की है, जो कोई नया सेशन स्टार्ट किया जाए लेक्चर के अलावा, जिसमें परिचर्चाएं हों और चीजें नई निकल के आए। आप रेगुलेशन पे बात करें, रेगुलेशन में बहुत सारी बातें हैं। मैंने रेगुलेशन को यूनिवर्सिटी में काफी काम किया था। रेगुलेशन पे बात करें, बहुत सारी इश्यूज हैं जो कि क्लैरिटी नहीं है। आई विल बी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम। थैंक यू। Definitely sir, definitely. Thank you very much sir. Thank you ma'am. Now from the Joint Research Training Center of Rajasthan, we convey our sincere thanks to all the participants for their active participation and commitment for today's session. We heartily thanks the guest speaker of the session, Dr. Anupam sir, and chairperson of today's session, Professor Nisha Gupta ma'am. We also thanks all participants again. Now this is the end of today's session, and we again thanks to all of you. Tomorrow we will start our session as sharp 6 p.m. Please join earlier. Thank you very much.